thing which surprised me till date is that in one of my inconsistent times I got top voice. Firstly, not giving hope or not losing hope based on what people say. So I've found a lot of my friends or people saying कि अरे यार ये भी लिंक्डइन पे डाल देगी क्या, तो इन्फ्लुएंजा है. अपनी रॉयल्टी दी थी उन्हें जो मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा. एंड देन आई रियलाइज इट वाज अ 500 करोड़ रुपीस का कैंपेन. पीयूष बंसल आल्सो लाइक्ड इट. कई लोग कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी खुद बना सकता हूँ. नहीं, आप अपनी स्टोरी खुद नहीं बना सकते. getting virality in someone else popularity. तो मेरे साथ कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि माई कमेंट हैज गार्नर्ड मोर लाइक्स देन द पोस्ट. हर कोई सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हमें भी व्यूज मिल जाएंगे, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बड़ा दुख है जी हमें, तो हम तो लिख देते हैं. अगर मान लो मैं आज 2 बजे पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कल 3 बजे कर रहा हूँ, परसों मैं रात के 10 बजे कर रहा हूँ, सो डज इट मेक एनी डिफरेंस? 1-2 साल में गैम्बलिंग से पैसा कमा लूं, मैं रिटायर हो सकता हूँ, इतना पैसा है. बहुत बहुत स्वागत है आज आप तीनों का इस पॉडकास्ट में. मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज लिंक्डइन जो एक प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अभी ग्रोइंग है. एज इंस्टाग्राम हैज ऑल्सो रीच्ड अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड लोग अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं, उसमें से लिंक्डइन एक है. और आप तीनों ने लिंक्डइन को कहीं ना कहीं क्रैक किया है. तनुषा एंड हर्ष आर लिंक्डइन टॉप वॉइस, मनीष भी कम्युनिटी वॉइस है. सो आज आप तीनों से मैं कई सारे इंसाइट्स लूंगा, शेमलेसली हर चीज एकदम नुआंसेस में पूछूंगा. और ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है 20 ईयर ओल्ड और उसको लिंक्डइन टॉप वॉइस बनना है या लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर बनना है तो वो कैसे बन सकता है. सो हाउ विल मूव दिस पॉडकास्ट? आप तीनों अपना इंट्रो एंड अपनी जर्नी शेयर करिए वन बाय वन, एंड देन मैं जनरल क्वेश्चंस लूंगा कि कैसे पोस्ट लिखना चाहिए, कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद तनुषा. Tanusha, go ahead. Yeah. You can. So, firstly, thanks a lot, Manav, for inviting all of us. And काफी time बाद हो रहा है podcast. I think all of us are very excited. So, sharing my bit on my journey, I think LinkedIn for me started as an experiment. I had joined an add-on course of digital marketing in my college before I joined my college. So, I just completed my 12th, and that was the time I got exposed to LinkedIn as a platform by one of my teachers. And I remember logging in, signing up for LinkedIn and being completely perplexed as to what this platform. समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या होता है. So, but yeah, I think that was also the time for me that sparked the curiosity to know more about the application, because Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter सब यूज कर रखा था उससे पहले, but LinkedIn नया था. तो curiosity थी. Around my second semester, I started writing on LinkedIn. It was not very consistent, I'd say, but it was just to express what I was feeling. So because I have been into writing pehle se, so I thought ki why not just let's write our thoughts on LinkedIn also. And as vague as what analogy I drive from metro to our life and anything, everything of that sort. And dhire dhire it was when I started realizing that, oh, there is an audience. Some people are liking what I write, and people appreciate what I bring for. People give suggestions also, and even I feel good about expressing myself in this platform. And slowly and steadily, I've carved out a niche for myself that I like talking about marketing, adulting, and soft skills. This is what I'm good at. This is what I'm interested in, and this is where I can add value for my audience also. So it was kind of an intersection of what I can provide and what they want to have. And that's how I started realizing the potential in the platform, and I started consistently writing it. There were spells of inconsistency. I would not say it was all perfect and rosy. So there were spells of inconsistency, but from time to time I geared up back. And even the thing which surprised me till date is that in one of my inconsistent times I got top voice. So I was not very proactively posting during that time. I was rather little inconsistent. When one fine day I get a notification of blue top voice, and I remember Harsh was the first person I texted. क्या तुझे भी आया है क्या? And he's like, हाँ मुझे भी आया है. Then we texted other people to know कि is it सबको आया है या हमें ही आया है. And then we were like, नहीं यार सबको तो नहीं आया है चलो तो. But yeah, like the thing कि the first person who came to my mind to ask this was Harsh. So yeah, that's a good thing, and great that Harsh and I both share this, and even Manish. So I would like to know Manish's deal on this too. But yeah, all in all, a good experience. I think this is something I cherish forever, and I wish कि मैं हमेशा अपने पास रखूं. Community guidelines follow करती रहूं मैं.
So yeah, I think, but this is all on my journey. I think one thing which has stood out for me in my journey is, firstly, not giving hope or not losing hope based on what people say. So I've found a lot of my friends or people saying कि अरे यार ये भी LinkedIn पे डाल देगी क्या, तू तो इन्फ्लुएंजा है, and this, and I think a lot of people are demotivated by statements like these. So वो नहीं हुआ मेरे साथ. अगर मुझे करना है तो मुझे करना है, तो कोई नहीं बदल सकता दिमाग. सेकेंडली, चाहे इनकंसिस्टेंट हो भी गए तो ऐसा नहीं है कि वापस कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं. नॉर्मली अगर हम ऐसे 2 दिन 4 दिन जिम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे छोड़ ही दो यार, अब क्यों ही जाना है, पूरे महीने ही नहीं जाते. दैट्स ह्यूमन नेचर. बट आई थिंक फॉर मी इट वाज कि नहीं लिखा 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कोई नहीं, चौथे हफ्ते लिख देंगे. तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि अगर गिर भी गए नीचे तो वापस बाउंस बैक करने की हिम्मत रखना इज व्हाट स्टूड आउट फॉर मी. या. तो अनुषा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं एक मार्केटिंग एजेंसी की फाउंडर है, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरी. मैं उनसे पूछ रहा था कि तनुषा हैज ओनली अराउंड 10,000 फॉलोअर्स, तो उसको लिंक्डइन टॉप वॉइस कैसे मिला. और उसका पहला लाइन था कि हाँ, ये उसका कंटेंट पढ़ो, उसका कंटेंट बहुत ही क्वालिटी वाला रहता है. और इसलिए मतलब उसने बहुत ज्यादा तारीफ करी आपकी. मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब अभी तक कितने ड्यूरेशन में कितने पोस्ट लिख चुके हैं. Firstly, so sweet of her. Please connect me to her. Always good to have feedback. And yeah, duration मतलब total तो I think 200 plus posts हो चुके होंगे अभी तक, roughly 250 भी हो सकता है, क्योंकि आप count तो कर नहीं सकते, सिर्फ images से आप rough idea निकाल सकते हो. But yeah, normal my posting frequencies when I was posting good was thrice a week. Although I have been into job recently, तो अब थोड़ा कम हो गया. I'm trying to get back on posting thrice a week. Monday, Wednesday, Friday is what I try to figure out. But yeah, mostly thrice a week. But as I mentioned, there have been times and spells I have posted once a week and sometimes even once a month. So, but it's about writing, it's about posting. Sometimes it's not about frequency, it's about just getting yourself to write that one post. वही एक achievement होती है अपने आप में, क्योंकि you are so down, you don't want to do something. So अगर आप एक भी लिख रहे हो महीने में, वो भी enough है. बट हाँ, मेरी frequency normally twice a week रहती है एवरेज टाइम में. बट ट्वाइस भी रह चुकी है, वंस भी रह चुकी है. सो इट्स अ मिक्स डिपेंडिंग ऑन माय टाइम शेड्यूल्स. Means you go over quality over quantity. या, क्वालिटी. Okay. सो बेसिकली अगर मेरे पास अच्छा कंटेंट है तो मैं डालूंगी, मैं सिर्फ डालने के लिए नहीं डालूंगी कि लिखना है. Got it. हम्म. Got it. और या. जब आपने पोस्टिंग स्टार्ट करी तो कौन से कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसकी वजह से जे करवाया. बिकॉज ऐसा होता है कि 50 पोस्ट नहीं चला, बट जो 91वां पोस्ट है वो बहुत बूम कर जाते हैं. तो ऐसे कौन से पोस्ट आपके थे जो ऐसे बूम किए पूरे. हाँ, सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी वायरल पोस्ट. एंड काफी लोग मेरे मतलब नेटवर्क में थे जिनके वायरल पोस्ट काफी होते थे कि यार 1 लाख इम्प्रेशन, 2 लाख इम्प्रेशन, सो मेनी लाइक्स. आयरॉनिकली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है. शायद क्योंकि मेरा कंटेंट मासी नहीं है. वो एक नीश के लिए होता है, वो एक सेगमेंट के लिए होता है. उन लोगों को पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है, दे गिव देयर फीडबैक. आई थिंक वो, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी उससे काफी. हाँ, मुझे लगा था कि कुछ कंटेंट है जो और ऑडियंस को पहुंच सकता है पर पहुंच नहीं रहा है, बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है, वाज माय क्वेश्चन. मैंने काफी बार हर्ष से भी इस बारे में बात करी है कि समझ नहीं आता मुझे बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है. बट या, थोड़े टाइम पहले आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माय राइटिंग स्टाइल. एंड मैंने उसमें थोड़े से ट्वीक्स किए, थोड़े से चेंजेस करे. एंड आई स्टार्ट पिकिंग अप टॉपिक्स जो थोड़े से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और डियर होते हैं. जैसे इंटर्नशिप्स हो गया, उसमें कि क्या मेन फंडा हम गलत पकड़ते हैं या क्या हमें इशू आता है, उस पर मैंने लिखा. तो ऐसे इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स वाले पोस्ट जो थे, they fared really well. So I think 2-3 posts went 1,000+ likes. And impressions फिर भी उनके 60-70 thousand impressions थे, not lakhs में मैंने नहीं गए अभी तक. बट या, इतने थे. तो मेरे तो वो भी मतलब काफी था. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स के लिए लिखती हूँ मैं, नंबर्स तो बहुत लेट आए हैं इतने वाले. मैं जब मेरे टॉप पोजीशन मुझे मिला तब तक मेरे पास ऐसे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं था, ना कि फॉलोअर्स का, ना ही impressions का, ना ही लाइक्स का. क्योंकि मेरे लिए हमेशा से यही रहा है कि अगर कंटेंट मुझे सेंस बनाता है तभी वो मेरी टीजी को सेंस बनाएगा. तो दैट्स व्हाट आई टिल डेट फॉलो. मनीष. Thank you, Manav, and thank you, Tanusha, for sharing your journey. So Manav, Thanks. मैं तो बोलूँगा कि मैं तो बहुत पुराने जनरेशन से हूँ.
मैं फेसबुक जनरेशन से हूँ एंड आई टेल यू कि हाउ डिड आई स्टार्टेड लिंक्डइन. ओके, सो मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव था, बट फेसबुक ऑब्वियसली इट वाज डाइंग, राइट. पीपल मतलब पीपल वर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव्स. तो मैं एक चीज़ हमेशा जोकिंगली बोलता हूँ कि मैंने ट्राई किया सबसे पहले ट्विटर. ट्विटर पे तब होता था 280 कैरेक्टर्स, आई थिंक नॉट इवन 280, तब 140 कैरेक्टर्स हुआ करता था, राइट. तो 140 कैरेक्टर्स में अपनी बात कहना, मतलब आई वाज नॉट दैट स्मार्ट इनफ कि मैं 140 कैरेक्टर्स में वो बात कह पाऊँ. तो ट्विटर को फिर मैंने मतलब आई थिंक बैक बर्नर पे रख लिया. उसके बाद मैंने सोचा यूट्यूब पे कुछ करते हैं. अब यूट्यूब पे 15-20 मिनट तक का लंबा कंटेंट बनाना, मतलब आई डोंट थिंक सो आई एम स्मार्ट इनफ कि मैं 20 मिनट तक कोई बात बोलूंगा एंड समबडी वुड लिसन टू मी फॉर 20 मिनट्स. सो वो भी बैक बर्नर पे चला गया. इंस्टाग्राम पे आई डिड ट्राई, देन आई रियलाइज यार आई एम नॉट इवन हैंडसम इनफ कि यार कि लोग मुझे मेरी शक्ल देखेंगे इंस्टाग्राम पे. तो वो भी बैक बर्नर पे चला गया. फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर शक्ल नहीं दिखानी थी इनिशियली. अभी तो चलो वो हो गया है, वापस से दिखानी पड़ेगी. बट इनिशियली ना शक्ल दिखानी है, ना कोई 140 कैरेक्टर्स की लिमिट है, ना वो फेसबुक की तरह डाइंग प्लेटफॉर्म है, राइट. तो आई थॉट कि दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, और वहाँ पर मैंने लिखना स्टार्ट किया. और जर्नी कैसे रही, आई थिंक इट वाज वेरी सिमिलर टू अ चाइल्ड, राइट. जैसे एक छोटा बच्चा पहले पैदा होता है, उसके बाद फिर वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो रनिंग करना सीखता है, फिर वो इनफैक्ट चलना सीखता है, उसके बाद फिर वो रनिंग करना सीखता है. तो मेरे साथ भी वही था, पहले क्रॉल करना सीखा, समझा कि भाई ये लिंक्डइन है क्या चीज़, राइट. मुझे पहले लगा ये सीवी वाला प्लेटफॉर्म है, मैंने सीवी बना के उसमें डाल दिया और उसके बाद मैं भूल गया. फिर बिकॉज आई वॉज पिवटिंग माई करियर फ्रॉम फिनेंस रोल्स टू स्ट्रैटेजी एंड सेल्स रोल्स, तब मैंने रियलाइज़ किया कुछ लोग इसको लीड जेन के लिए भी यूज़ कर रहे थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में. तो उनके देखा देखी मैंने भी थोड़ा सा स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि आपको कनेक्शंस के साथ इंगेज करना पड़ता है, तो मैंने इंगेज करना स्टार्ट किया. फिर थोड़ी बहुत हेल्प करना स्टार्ट की लोगों की, मतलब इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब, समबडी इज लुकिंग फॉर समथिंग, तो मैंने हेल्प करना स्टार्ट करी. एंड धीरे धीरे फिर आई थिंक एक वो अथॉरिटी बन गई, वो थॉट लीडरशिप बन गई, एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग एंड उसके बाद तो काफ़ी अच्छा हो गया. और ये सब जब मैं कर रहा था, लकीली एक चीज़ ऐसा हुआ कि LinkedIn actually called me and they said कि we want to feature you in नहीं, they did not said me that they want to feature me in their TV ad. They said we want to feature you. That's the only thing that they told me. अब me being a chartered accountant plus sales का बंदा, तो मैंने सीधा सीधा मेरा सबसे पहला सवाल था कि पैसे कितने मिलेंगे, राइट. प्लस मैं सिंधी भी हूँ, राइट. तो पैसे कितने मिलेंगे. सो दे सेड कि सर पैसे वैसे तो नहीं मिलेंगे, बट यू जस्ट कम टू मुंबई. तो उन्होंने मुझे टिकट भेजी, मैं मुंबई चला गया. मेरी ज्वाइनिंग थी, मुझे ध्यान है, पुणे में कुछ 6-7 दिन के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो मुंबई चला गया. वहाँ पर उन्होंने इतना लो की प्ले किया कि मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा करने वाले हैं. सो दे सेड कि पहले दिन मेरा एक काइंड ऑफ फोटो सेशन हुआ. मतलब इतनी फोटोज तो मेरी शादी के दिन भी नहीं खींची थी, इतनी फोटोज खींची उन्होंने मेरी. उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना वील वांट टू चेक योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने मुझसे वो 15 सेकंड के ऐड के लिए काफ़ी सारी बार रिपीट करवाया. वो एक जो डायलॉग था वो पूरा दिन वो चला. और तीसरे दिन उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ अपना मुंह हिलाना है एंड ऐसा लगना चाहिए कि दैट यू आर टॉकिंग टू समवन. तो मैंने 3 दिन तक ये चीज़ें 3 दिन तक करी. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज स्टेइंग इन द बेस्ट 5-स्टार होटल, लिंक्डइन के मार्केटिंग हेड से मिल रहा हूँ, लिंक्डइन के लोगों से मिल रहा हूँ. तो आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है. उसके बाद दे सेड कि उन्होंने मुझसे एक पेपर साइन कराया जिसमें लिखा हुआ था कि आई विल नॉट क्लेम एनी रॉयल्टी ऑफ वट एवर दे विल बी डूइंग विथ माई पिक्चर्स. मुझे लगा क्या ही होगा, साइन कर लेते, कितनी ही इसमें से रॉयल्टी निकल जाएगी जो मुझे नहीं मिल रही है. एंड आई सेड ओके चलो ये कर लेते हैं. और मैं फिर घर पहुंच गया. उसके बाद मुझे, क्योंकि पुणे शिफ्ट होना था, तो मुझे ट्रेन में जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास सामान बहुत सारा था. तो मैं जयपुर से पुणे की ट्रेन में गया, which is somewhere around 20-21 आवर्स की जर्नी, राइट. तो और उसी दौरान IPL का मैच भी था, फर्स्ट मैच. जब मैं पुणे के अपने होटल में पहुंचा और मैं सो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था. अगले दिन मॉर्निंग में मैंने जब ज्वाइन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे सेड यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था दैट यू आर अ सुपरस्टार. आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय अ सुपरस्टार. बोले कि कल जब IPL का मैच स्टार्ट हुआ तो वी सॉ योर एड्स, इट वाज अ 15 सेकंड एड और हर ओवर के बाद आ रहा था. ओके ये हो गया होगा. आई सेड कि ऐसा कुछ हुआ था, मैंने कुछ तो मैंने
अपनी रॉयल्टी दी थी उन्हें, जो मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट मुझे पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा। एंड देन आई रियलाइज इट वाज अ 500 करोड़ रुपीस कैंपेन wherein they had shared my photos in social media, वीडियोस ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे। इनफैक्ट हर आईपीएल के ओवर के बाद एक ऐड आ रहा था। हर एक मेजर एयरपोर्ट में मेरी एक बड़ा सा एक कटआउट लगा हुआ था, बिल बोर्ड लगा हुआ था। सो इट वाज अ वेरी बिग कैंपेन। एंड देन आई रियलाइज शिट यार, ये तो मुझसे गलती हो गई, आई कुड हैव चार्ज देम गुड मनी फॉर दैट। सो ऐसा रहा। एंड देन स्लोली स्टडीली एवरीथिंग वेंट गुड यार। उसके बाद मैंने जोश टॉक दिया, पीपल देन स्टार्टेड रियलाइज काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मी। सो या उस तरीके से फिर आई थिंक लिंक्डइन बिकेम माय गो टू प्लेटफॉर्म। और उस वजह से आई थिंक मेरे So, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बहुत बढ़ गए बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन एज वेल एज द जोश टॉक। बट आई स्टिल बिलीव लिंक्डइन इज माय प्लेटफॉर्म, जिस पे मैं एक्चुअली जब मैं लिखता हूँ तो बड़ा मजा आता है। इंस्टाग्राम पे इतना मजा नहीं आता। एज आई सेड, आई एम नॉट वेरी गुड लुकिंग, तो इंस्टाग्राम इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी, बट LinkedIn is something that now I cherish. मैंने भी शायद वो आईपीएल के टाइम वो ऐड देखा होगा। You would not believe, I had somewhere around 1,000 or 2,000 unread SMSs and WhatsApp messages when that thing came up. I have a question, Manish. Yes. So basically, like, how did they reach out to you? So मतलब They just उनको called me. कैसे They just आइडिया आया called कि me. आपको They just called आपको me. फीचर करना है? सिंपल, मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि उन्होंने मुझे ही क्यों कॉल किया, बट देन दे सेड कि दैट यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड आवर स्टैटिस्टिक्स शो दैट यू आर वेरी एक्टिव। ये आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, So okay. maybe that was the reason. तो I call myself Vishnu Pitama of LinkedIn for at least CAs की, chartered accountants के लिए तो मैं Vishnu Pitama हूँ, that I started that LinkedIn thingy for them. उसके बाद तो we can see Harsh and other people who are from the CA fraternity who are doing so good. But I would call myself as the Vishnu Pitama of LinkedIn for CAs. अरे you should have charged यार इतना सब कुछ हाँ, करा now आपने I realize फ्री that में। if it was a आई 500 थिंक crore company तनुषा इज तो टेकिंग 50 नोट्स लाख तो कि मुझे अभी लेने मेरे चाहिए। पास आएगा, मेरे को कम से कम 1-2 करोड़ तो चार्ज करने हैं। बट नाउ I'm giving you a heads up that कि अगर LinkedIn वाले आपको फोन करें तो you have to charge, simple. ठीक है, मैं आई Okay. विल डीएम यू फॉर द रेट्स अगर कभी Okay. देने पर। अनिल भाई आपकी कहानी सुनाओ। और मैं पहले बता देता हूँ सबको, हर्ष बहुत ही बिजी आदमी है, बहुत ही ज्यादा। वो बिल्कुल टाइम नहीं देता है, उसको जब भी फोन करो बहुत बिजी रहता है वो। उसको मैं अभी 9-10 पे भी कॉल किया, ही वॉज बिजी, ही सेड मैं क्लाइंट को कुछ भेज रहा हूँ, मैं 9:30 बजे ही कनेक्ट करूंगा। वो बिग फोर में भाई वो काम करता है मतलब, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं होगा। यार देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा थोड़ा बस हर्ष, रिलेटिवली चिल है। मतलब आई थिंक आप उसी बिग फोर में काम करते हो जिस पे आजकल कोई काम नहीं करना चाहता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट प्लीज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट प्लीज। हाँ जी। ओके हर्ष, स्टार्ट योर जर्नी, इंट्रो। यार मेरी जर्नी तो बहुत सिंपल थी। सो इट्स अबाउट, ये बात है जुलाई 2021 की, 12th के रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट मेरी बहन ने लिंक भेजा था, लाइक इट वाज लाइक फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय नीर, दैट इज द एचआरडी सेल ऑफ हंसराज कॉलेज। तो वहां पे ऐसे लोग सेशन ले रहे थे, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को क्या करना देता है, लाइक ठीक है लेट्स गो। तो पहली चीज उन्होंने क्या किया था, वहां पे उन्होंने लिंक्डइन के बारे में बताया था। सो वी हैड टू डाउनलोड लिंक्डइन, सेट अप आवर प्रोफाइल, और वहां पे उन लोगों ने तानिया बहल की प्रोफाइल दिखाई थी, शी इज आल्सो नोन इन लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर इफ यू नो। तो वहां से तब उनके 16,000 फॉलोअर्स थे, तो तब से मुझे 16,000 वाला नंबर बड़ा फैसिनेट करता था। आई आल्सो शेयर्ड दिस इन वन ऑफ माय लिंक्डइन पोस्ट एज वेल। तो हाँ, और एक वो वाला टाइम था कि जब बहुत ज्यादा अमन अग्रवाल, संदीप माहेश्वरी, बहुत ज्यादा अली अब्दाल देख रखा था। तो आई वाज लाइक नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं ही हूँ। आई एम श्योर अगर मैं होता अब तक मेरी लिंक अभी जैसे इंस्टाग्राम पे जिनको रोस्ट कर रहे होते हैं वो मैं हो रहा होता, आई एम श्योर। जैसे आजकल वो नहीं सुन रहा कि क्या है वो, सपना देखना अच्छी बात है, तो वहां पे मेरी चल रही होती थी। ओके, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो देखो यार, मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं था कि फॉलोअर्स के लिए करना है या मनी से। आई जस्ट स्टार्टेड शिट पोस्टिंग बिकॉज दैट वाज द टाइम कि मेरा थोड़ा से फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए, तो आई वाज लाइक आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन, जो मेरे को मन करेगा मैं वो डालूंगा। थोड़ा सा और भी लोगों को देख के मोटिवेट होता था कि वो कैसे चीजें शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे मैं रैंडम चीजें डालते रहता था कि थॉट है, थॉट डाल दिया। शुरुआत के 2-3 महीने तो वही ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे कोट्स नहीं आते, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, फाइंड योर पैशन, फाइंड योर पर्पस। वो अभी मेरे लिंक्डइन में पढ़े होंगे तो आई नाउ फाइंड इट क्रिंज, बट इट्स स्टिल अ गुड मेमोरी। उसके बाद मेरा ऐसे ही था, कभी बीच में आया कभी बीच में नहीं आया। आई बिकेम मोर एक्टिव आफ्टर माई सीए ग्रुप 2 हो गया था, May 23 था, और मेरे पास पूरा एक साल था जिससे तब तक मेरी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई थी। तो हाँ,
तब मैंने बहुत ज्यादा शिट पोस्ट नहीं करी है, दैट्स एक्यूरेट वर्ड। लाइक तनुषा कहती थी को 3 बार हफ्ते में डालती थी, मैं 3 बार के ऊपर दिन में डाल देता था। और मैं मतलब मेरा तो ऐसा होता था, लोग कहते थे कि हम अपना फोन खोलते हैं टॉप पे तेरी पोस्ट आती है, लाइक कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो हाँ, दैट वाज अ गुड टाइम। धीरे धीरे करके दैट केम टू लाइक वंस अ डे। और वंस अ डे वाला शायद से ऑलमोस्ट जुलाई 2023 से लेके फेब या जैन तक चला होगा। लाइक आई पोस्टेड ऑलमोस्ट डेली। लाइक आइडियाज कभी खत्म नहीं होते मेरे दिमाग में आने, दो आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय माइंड, बट काफी बार मेरे को नाउ आई डोंट पोस्ट दैट ऑफ्टन, मे बी लाइक वंस और ट्वाइस और एट मैक्स थ्राइस अ वीक, जब मेरे को लगता है ऑलराइट दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली शेयर। और मैं थोड़ा सा करता हूँ कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन वैल्यू एडिशन और शेयरिंग सम थॉट जो एक्चुअली मेरे को पढ़ने के बाद मजा आया, बाद मेरे को नहीं लगा रैंडम कोई थॉट आया था वो मैंने डाल दिया। सो इन अ नटशेल दैट हैज बीन माय लिंक्डइन जर्नी ऑल टुगेदर। बहुत इंटरेस्टिंग। और जब जब आपका मतलब जे कर्व कैसे आया, क्योंकि आपने बताया आप एक बार एक दिन में 3 3 पोस्ट डालने लग गए, एक टाइम भी ऐसा था। कौन सा ऐसा टाइम था जब जे कर्व आया, और क्या मतलब अगर आप कुछ नंबर दे पाए कितने से कितना फॉलोअर मूव किया? मेरा जे कब आया था, लाइक देखो व्हेन आई स्टार्टेड एट लाइक मे, अब देखो आजकल तो 4-5 हजार फॉलोअर्स पाना बहुत आसान हो गया रिलेटिवली, बट पिछले 2-3 साल पहले 3-4 हजार फॉलोअर्स करना बहुत एक अलग टास्क होता था, ठीक है। तो तब तो मेरा क्या था, मेरा जे कब बेसिकली आया था ग्रुप 1 के मार्क्स के बाद। नहीं, उससे पहले मेरी पोस्ट वायरल हुई थी शार्क टैंक को लेके, पीयूष बंसल ऑल्सो लाइक्ड इट, उससे 500 फॉलोअर्स बढ़ गए थे। उसके बाद एक मेरा मेन जो हुआ आई गेस वो ग्रुप 1 के जब मार्क्स मेरे आए, उसके बाद बिल्कुल एक मेरे को एक बहुत पीक दिखा था, अराउंड 600-700 फॉलोअर्स तो मेरे रिजल्ट वाले दिन बढ़ गए थे। उसके बाद आई पोस्टेड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, मैंने ऐसे किया था, ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। उसके बाद ऑल टुगेदर 4 हजार तब हो गए थे अपने May 23 के अराउंड, दैट के लाइक अराउंड 10,000 हुए मेरे August 23 के अंदर, 20,000 हुए मेरे December 23 के अंदर, देन 40,000 हुए अराउंड देन May-June के अंदर। सो दैट हैज बीन माय 2x कंपाउंडिंग जर्नी। फ्लेक्स, सटल फ्लेक्स। Yeah, that's not subtle flex, you have a quality audience. तो हम लोग मेरे को एक बार, और बाकी जो जो देखेंगे उनको एक बार, आप सबकी जर्नी तो समझ में आ गई। अब मैं ना थोड़ा और स्पेसिफिक एक एक टच पॉइंट्स में जाऊंगा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करनी चाहिए, पोस्ट कैसे लिखना चाहिए, हम्म। और एक एक करके आप अपने तीनों व्यूज दीजिए। एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस भी एकदम फ्रीली आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो विल कीप इट वेरी कॉन्वर्सेशनल। अगर मैं स्टार्ट करूँ, जो सबसे पहले हेडलाइन होता है जो नाम के नीचे, वो कैसा रहना चाहिए, कितने लाइन का होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए एग्जैक्टली उसमें? तनुष आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन मनीष एंड हर्ष। सो मतलब मेरा व्यू ये है कि ये टाइम टू टाइम बदलता है. It was not always going to be the same. So just telling from my own experience, when I entered college and started writing on LinkedIn, and college खत्म होने तक भी वो काफी लंबा था, like कम से कम तीन, अगर फोन आप खोला हुआ है तो फोन में आपको 3 4 लिखेंगी लाइनें. उसमें मैंने स्टार्टिंग में वर्टिकल सेपरेटर लगाती थी, फिर मेरे को वो नीट नहीं लगा तो मैंने डॉट वाला सेपरेटर लगा दिया, बट कोई सेपरेटर होना चाहिए. एंड पहले मैं बहुत कुछ लिखती थी, लाइक ये भी, कॉलेज भी, इंटर्नशिप भी यहाँ करी है, ये कोई अवार्ड है, ये कोई फीचर है, ये वो है. फिर धीरे धीरे व्हेन आई ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू जॉब, आई थॉट कि दिस इज वेरी अननीट एंड अनप्रोफेशनल. तो आई जस्ट सबमिट अप टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरी फर्स्ट लाइन में दिखना चाहिए. तो मैंने अपना करंट पोजीशन डाला, डेजिग्नेशन कहाँ पर है वो डाला, किस कॉलेज से पास आउट हूँ वो डाला, और वन थिंग दैट स्टैंड आउट फॉर मी वो मैंने डाल रखा है कि जो मुझे लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. सो माय सजेशन टू पीपल इज कि यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट कि यार ये तो इतना ही होना चाहिए या इतना ही परफेक्ट है. इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. एंड टेक इट एज एसईओ. जैसे हम अपना कीवर्ड्स ढूंढते हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए कि यार किस पे हमें रैंक कराना है अपनी वेबसाइट को, उसी तरीके से कौन से कीवर्ड्स पे आपको रैंक कराना है अपनी प्रोफाइल को. तो आपको लगता है कि अगर आप, जिनके लिए लिंक्डइन इज अ स्पेस फॉर बिजनेस टू गेट लीड्स, उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान हेडलाइन होनी चाहिए कि वो ऐसा क्या डाल रहा है, ग्रोथ स्पेशलिस्ट, ग्रोथ मार्केटर, व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यूजिंग, दैट इज शुड बी वेल रिसर्च्ड. बट फॉर पीपल लाइक अस हु आर कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट लुकिंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग, it can be your college, your course name, depending upon what is important, what you want to show the world. A lot of people are not comfortable with naming their college, they say Delhi University, that's completely fine, whatever works for you.
देन इफ यू हैव एनी अचीवमेंट लाइक अगर HSBC यू हैव वन, ऐसा कुछ भी जिसका भी जो भी है या जो भी आपने फीचर किया, या फिर यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट कि आप क्या क्या चीजें रोल्स ले सकते हो, पोएट, ऑथर, पॉडकास्ट स्पेशलिस्ट, ऐसी चीजें। सो डिपेंड्स, ये 3-4 चीजें हैं जो नॉर्मली कंज्यूम एंड मेक योर encapsulate and make your headline. But of course, from time to time, evaluate and change it as per the need. And उस वक्त आपका क्या स्टेज है, अब नहीं हो पोएट तो हटा दो। हमेशा रखने की जरूरत नहीं है, इज द थिंग। या सो आई थिंक मैं एक चीज़ से तो डिसएग्री करूंगा वैसे तनुषा से कि यू शुड चेंज योर हेडलाइन, क्योंकि मेरा हेडलाइन है फीचर्ड बाय लिंक्डइन इन द टीवी एड, वो तो मैं नहीं करने वाला चेंज। वो हाँ, पूरा मतलब हाई दैट्स पॉइंट है। इम्पोर्टेंट फॉर यू ना, तो रखो, हाँ, तो दैट्स अ जब गुड तक वो थिंग। हाई पॉइंट से ऊपर कुछ नहीं चला जाता तब तक नहीं चेंज करना चाहिए आइडियली, वो लगा चला हाँ सकते हाँ। हो। अब तो सीधा शार्क टैंक में शार्क आएगा। हाँ राइट। सो सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब पूरी ही हेडलाइन चेंज कर दो। ऑफ कोर्स, जैसे मेरा SSC बेस लिखा हुआ था तो वो आज भी लिखा हुआ है। So some sections of your headline will always be there for you because they're important. सॉरी टू But I'm इंटरप्ट, सटल फ्लेक्स। प्लीज, सो कॉलेज का नाम है मेरा, अब मैं क्या बोलूं। इसे फ्लेक्स ना करूं मैं। तो मतलब बट यही है कि स्टार्टिंग में मैंने ऐसे लिखे रखा था कि फीचर्ड ऑन टाइम स्क्वायर, डन दिस डन दैट, वो सब मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज मुझे लगा कि ठीक है, इट्स फाइन, हो गया, बहुत दिखा दिया, इट्स कम्प्लीटली फाइन, अब उसको हटा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इफ समवन वांट्स टू पुट इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि कोई टेलर मेड सोल्यूशन नहीं है इसका। जिसको जो अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। जो आपको लगे कि मेरी प्रोफाइल पे आके व्यूअर को सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एब्सोल्युटली अग्री। जो व्यूअर सबसे पहले अगर देखकर जिस चीज़ से फैसिनेट हो रहा है, बिकॉज सी मोस्टली लिंक्डइन किस लिए, आइदर वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए राइट, या या फिर वो जॉब्स के लिए है, या फिर कोई लीड जेन के लिए यूज कर रहा है राइट। इन 3-4 चीज़ों के लिए लिंक्डइन यूज कर रहे हैं लोग। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है आपके व्यूअर को, वो डेफिनेटली वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। एंड आई थिंक उसके बाद एक वो हाई पॉइंट, जैसे मैंने बताया, जो हाई पॉइंट है उसको डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द हाई पॉइंट दैट आई हैव। प्लस आई थिंक वेरी राइटली सेड बाय तनुषा कि इट्स लाइक एन एसईओ फॉर यू, कि आप चाहते हो कि मुझे लोग जब सर्च करें, if I am somebody who is doing sales and strategy, so that should be specifically highlighted in my headline that I do sales and strategy. I am one of the only chartered accountants who do sales and strategy, right? Most of the CAs do finance, accounts. तो अगर मैं सिर्फ CA लिखूंगा तो finance और accounts के लिए सर्च किया जाऊंगा, but I am not that kind of a CA जो finance और accounts कर रहा है, right? तो वो कैसे अपने आप को मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ फ्रॉम, और काइंड ऑफ जिस तरीके की ऑडियंस को मैं केटर कर रहा हूँ, क्या वो मुझे उस तरीके सर्च कर पा रहे हैं, तो दैट्स समथिंग दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन योर हेडलाइन। अगर ये दिमाग में क्लियर है तो फिर एंड ऑब्वियसली चेंजेस करते रहने चाहिए। हम हमारा करियर प्रोग्रेशन भी होता है, हमारा थॉट भी थोड़ा सा आगे जाता है, तो थॉट प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन, उसके बेसिस पे चेंजेस करते रहना चाहिए। एक हाई पॉइंट को हमेशा हाईलाइट करते रहना चाहिए। प्लस जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपको सर्च करे, वो डेफिनेटली इसके अंदर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक हमारे हेडलाइंस में होना चाहिए। Harsh, what's your नाउ opinion? आई आई बिलीव कि मैं यहाँ पे तनुषा की साइड पे ज्यादा रहूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं भी उसी जर्नी के थ्रू लाइक जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में सबसे तो हर 2-2 3-3 महीने में और थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, आपकी सोसाइटीज आ जाती हैं, कॉम्पिटिशन आते हैं, रोल्स आ जाते हैं, इंटर्नशिप्स आ जाती हैं। तो एट दैट पॉइंट यू हैव अ लॉट टू राइट, स्पेशली अगर आप सोसाइटीज के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो, आप इंटर्नशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो, तो आई गेस वहां पे ठीक है। बट इसमें व्हाट आई बिलीव इज दैट एज सून एज यू ग्रेजुएट अपने कॉलेज से, तो उसके बाद मेरे यहाँ पे दो दो बिलीव्स हैं। लाइक अगेन इट कैन चेंज लेटर ऑन, कि अभी के लिए आई वुड प्रेफर दैट माय हेडलाइन बहुत बड़ी भी ना हो, कि ऐसा हो कि अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है कि तब वो बस एक क्लीन मैसेज, लाइक राइट नाउ इट इज जस्ट the company I'm working at, my domain that I'm a CF analyst, and that is one header that views are personal, like something that I would prefer कि मैं लिखूं जब भी मैं कुछ वो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो हाँ, दैट्स ऑल। बट हाँ, इसमें एक और जाती है, इफ आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, तब मैं उसको कहूंगा कि मैं प्रॉपर अपना एसईओ फॉलो करूँ, इंश्योर करूँ देयर इज समथिंग नोन एज बुलियन सर्च। आई वुड आइडली एडवाइज द ऑडियंस कि वो उसके ऊपर लिखे, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज बुलियन सर्च। आप देखोगे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ रैंडमली दैट आई नीड दिस पर्सन, लाइक सोशल मीडिया मार्केटर, तो नीचे क्या पता कोई और मीडिया मार्केटर भी आ जाए। बट अगर मैं बुलियन सर्च यूज करके विल हैव टू यूज सर्टेन अपॉस्ट्रोफ्स, वो सर आप एक बार लिंक्डइन की गाइडलाइंस में देख सकते हैं कि कैसे यूज करते हैं। तो उसमें से प्रॉपर कीवर्ड्स अगर मैं लिखूं कि मेरे को चाहिए
जैसे अगर मेरे को चाहिए लाइक if I'm trying to look for a person who's from IIM but not an IIT, I can specifically mention that to don't show me a person who has written IIT in the tagline. तो हाँ, इस समय बुलियन सर्च एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है. तो if I will ever look to switch, या फिर मैं जब सीए बनने के बाद जॉब हंट करूंगा, देन डेफिनेटली मैं उसको बहुत ज्यादा एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहूंगा. बट बिकॉज एट दिस पॉइंट आई एम मोर क्रिएटर फोकस्ड एंड जॉब फोकस्ड, मैं सिर्फ जो बहुत ही मेन चीजें हैं मैं वो दिखाता हूँ. ऑल माई कॉलेज, ऑल माई प्रीवियस इंटर्नशिप्स, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, एवरीथिंग कोई मेरी प्रोफाइल पे आके देख सकता है. लाइक दैट्स हाउ आई लुक एट इट राइट Got it. एक जो बुलियन सर्च आपने बताया, ये डेफिनेटली ये थोड़ा नया था, बिकॉज मैं भी लिंक्डइन कई टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं था. अब अगर मैं एक बेसिक जो बात करूँ, एक प्रोफाइल पिक्चर और बैनर की, इस पे अगर आप शॉर्ट में बता के एक बार आगे चले जाएं हर्ष, फिर हम लोग अबाउट सेक्शन की नाउ. बात करेंगे. ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बहुत वो है कि लाइक इसके अंदर ना दो चीजें आ सकती है. बट आई विल ट्राई टू गिव यू माय ओपिनियन एंड व्हाट अ लॉट ऑफ रिसर्च एज आल्सो सेड. जैसे काफी बार क्योंकि लॉट ऑफ पीपल, जैसे अगर कोई किसी माइक या उस पे बोल रहा है, सो वो भी चल रहा है, दैट इज आल्सो फॉर्मल. बट बेसिकली अगर आपके पास एक ऑप्शन है जब आप फोटोज खींच सकते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आपकी एक स्ट्रेट फेस हो, एक नॉर्मल सी स्माइल हो, और प्रेफरेबली एक फॉर्मल क्लोथ. तो प्लीज मेक श्योर आपकी शादी वाले कपड़े या फिर रैंडम कोई टी शर्ट वगैरह आपने ना पहन रखी हो, फॉर्मल कपड़े हो और एक नॉर्मल स्माइल हो. बैकग्राउंड प्रेफरेबली व्हाइट हो या कुछ ऑफिस बैकग्राउंड हो तो वो चल सकता है. अगर किसी को ऐसे बैकग्राउंड्स में दिक्कत हो रही है, वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लेके एक वेबसाइट है pfpmaker.com पे जाके अपनी एक प्रोफाइल, बस अपनी फोटो को इंसर्ट करना है, अच्छी क्वालिटी के ओवरऑल पीछे बैकग्राउंड खुद एडजस्ट कर देगा. सो हाँ, दैट इज हाउ आई वुड लुक एट. आज जब मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना रहा हूँ ना, टॉकिंग अबाउट बैनर, बैनर में बहुत चीजें आ सकती हैं. बैनर में अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, अपना कॉलेज डाल सकते हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड यू, या आप अपनी हेडलाइन भी यूज कर सकते हो. हमारा ऑर्गेनाइजेशन डज, आई एम श्योर तनुषा की भी करती होगी, मनीष की भी करती होंगी, जब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले रहे हैं. मैं आई एम नॉट श्योर, शायद से आप एट दिस पॉइंट इन स्टेल्थ मोड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनीष, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. राइट. तो हाँ, आप वहां पे कर सकते हैं. या फिर अगर आपने कहीं पे कुछ स्पीच दे रहे हैं, आप वहां की एक फोटो डाल सकते हैं. तो लाइक बैनर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. कैनवा पे जाके थोड़े से सैंपल देख सकते हैं जहाँ पे लोग अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर सब डाल देते हैं. माय प्रेफरेंस इज दैट आप एक छोटी सी ईमेल आईडी देने के बाद आई वुड प्रेफर मोर ऑन pictures honestly rather than like writing a big वो चीज, until and unless you're trying to provide some services that can be subjective from person to person. राइटिंग अ कोट इज ओके, लाइक पोस्टिंग अ फोटो जिसमें कोट हो हाँ, कोई. आई थिंक हाँ हाँ, दैट इज ओके टू. बट अगेन मैं कहूंगा कि आप उस कोड को नॉर्मली लगा सकते हैं. जैसे मैंने खुद अपने लिए बना रखा है दैट लर्निंग टू अनलर्न, दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स हमने बचपन से सीखे हैं दैट वी नीड टू अनलर्न एज एन अडल्ट. दैट इज समथिंग दैट आई हैव पुट अप अपनी पिक्चर के साथ भी. बट आई थिंक जब आप एक किसकी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, अगर आप उनकी और एक्टिविटीज एंड स्पेशली प्रोफेशनल एक्टिविटीज को देखते हैं, इट ब्रिंग्स अ मोर पर्सनल टच. जैसे अगर आप मेरी विजिट करेंगे, विल सी माय कॉलेज PA conferences, and at a time I was taking a webinar, उसका combined मैंने कुछ लगा रखा है. So something like that. और या फिर आप जैसे मेरे को आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर उसका उनका नाम, जैसे काफी लोग अपने पीछे ऑर्गेनाइजेशंस का बना के वो एक वो लगा देते हैं चार्ट. दैट आल्सो लुक्स काफी अच्छा. Got it. एंड नाउ इफ आई कम टू द अबाउट सेक्शन जो होता है, तनुषा अगर आप स्टार्ट करें कि अबाउट सेक्शन कैसे फ्रेम करना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए और कितने वर्ड्स का होना चाहिए. So I think word limit can vary again from people to people. I've seen some very short about sections also and some very long ones also. One thing is don't keep it very long. मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई पढ़ता नहीं है उसे honestly. कुछ लोगों का मैंने देखा है which I like is कुछ लोगों ने ऐसा TLDR वर्जन दिया होता है छोटे में ऊपर and then they have explained. किसी को छोटे में समझना है one line तो this is about me then you can read. I think innovation creativity is appreciated here. थोड़ा सा आप क्रिएटिव बना सकते हो, थोड़ा सा कुछ न्यूनेस ला सकते हो. इट्स अ स्पेस टू टेल अबाउट योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स जो आपको मौका मिल रहा है. I think it is also a place to highlight your entire LinkedIn profile at one space. So अगर आपकी कोई पूरी प्रोफाइल है, आपके ऑनर अवार्ड सेक्शन, आपका इंटर्नशिप सेक्शन, कुछ भी ना देखे, वो सिर्फ अगर वो पढ़े फिर भी उस इंसान को आइडिया लग जाए कि आपने क्या काम कर रखा है, what is it that you are proficient in, what is it you are seeking from the platform. Specifically for people who are providing services, they should actually take it as a sales pitch, but very cleverly. So it should not look very salesy also that आप about section में अपने आप को इतना ज़्यादा बेच रहे हो, but it also twists and turns में बता रहा है कि यार this is my proposition and that's why you should mail me or hit me up for this. So I think for those kind of people who are looking for leads and business
वाले पीओवी से, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन. एंड या ऑलवेज मेंशन योर ईमेल आईडी आल्सो. ऑल्दो लिंक्डइन में आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके भी ईमेल आईडी आ जाती है, पर काफी लोगों को नहीं पता होता है वो. सो जस्ट फॉर सिंपलर यूआई यूएक्स, कि किसी इंसान को आपको रीच आउट करना है, उससे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ईमेल हर इंसान को समझ आता है अभी के जमाने में. तो आप सीधा अपने अबाउट में डाल दिया कि डीएम मी और पिंग मी हियर एट ईमेल, तो मैंने मतलब दैट्स व्हाट आई डू. उससे मेरे को ज्यादा ईमेल्स आते हैं. सो आई थिंक पीपल फाइंड इट इजियर टू कनेक्ट via that purpose. So yeah, I think these are some basic hygiene checks. Of course, be natural. Use your own language and don't try to uh, chat GPT or AI. I mean, you can take help, of course, but try to write in your own style. Make it sound like you. Yeah. आई थिंक समवेयर जब हम अबाउट लिखते हैं तो अगर चैट जीपीटी को यूज करें, सो इट हैज नाउ बिकम मोर एविडेंट दैट आई एम ट्राइंग टू एम्ब्रेस योर अनवेवरिंग सपोर्ट. Yes. So please help So me foster my own growth. I I have a prompt on ChatGPT जिसमें एक बड़ी सी लिस्ट है that these are the words you should not use. तो वो थोड़ा oh थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है. There are at least, I'll share it with you guys also. yes, There are please, at we least need it. 110 or 120 words that you should not use in your response so that it doesn't look very chat Please GPT-ish. don't share it with me. मैं पहले ही बहुत आलसी हूँ. चैट जीपीटी मेरा पहले चैट जीपीटी ने मेरी वो अंग्रेजी थोड़ी वो बिगाड़ दी है. हैंडीकैप्ड अगर वो ना चल रहा हूँ. So एक वो है. एंड आई थिंक मानव, जब आप फोटो के बारे में पूछ रहे थे, आई थिंक एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मेरी अभी आप जो फोटो देखोगे इट इज बाय लिंक्डइन ओनली. दे हैड ओनली आस्क्ड मी टू चेंज दिस प्रोफाइल, और तब से फिर मैंने वही चला रखी है. और आप बैनर देखोगे वो भी लिंक्डइन ने दिया है. तो आई थिंक Flex, जो उन्होंने, flex. yes, maybe flexing, but I'm just trying to highlight the point ki what LinkedIn might be thinking when they were sharing that photo or banner with me. Ki if you see that the banner says ki that I am in it to push boundaries, right? There's one tagline that I have. That tagline can be there in your banner. आपकी फोटो के साथ प्लस व्हाट यू डू, वो एक आ जाना चाहिए. आई थिंक हर्ष ने बहुत अच्छी बात बोली कि इट माइट चेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि कल को मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं कुछ और काम करता हूँ, तो दैट कैन ऑल्सो कम देयर. फोटो में आई थिंक आई स्टिल बिलीव मे बी वेरी आई थिंक बहुत पुराना ख्यालात वाला इंसान लग सकता हूँ मैं यहाँ पर, बट आई स्टिल बिलीव इट हैज टू बी प्रोफेशनल यार. मतलब डेफिनेटली लाइक हाँ. प्रोफेशनल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप किसी मतलब कैफे में बैठ के अच्छी एक अपनी लाइटिंग ऐसे वाली फोटो, और कितने सारे एआई के टूल्स आ गए हैं जिससे आप अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एक थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो. इट हैज टू बी प्रोफेशनल. कई लोगों को मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे ही कोई टी शर्ट में डाल दिया और ये वो कर दिया. हाँ, आई that's थिंक इट्स very इट weird. यू टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन, तो इट हैज टू बी प्रोफेशनल. तो वो एक दिमाग में रखना चाहिए. अबाउट सेक्शन की जो आपने बात करी, आई थिंक कंप्लीटली एग्री विद तनुषा. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Having said that, कि अब जब मैं अपना देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा था. आई थिंक आई विल टेक अ नोट ऑफ इट एंड आई विल ट्राई एंड रिड्यूस इट. बट मोटा मोटी आपने क्या किया है, क्या करना चाहते हो और क्या करोगे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रीलांसर और इफ यू आर जॉब. तो बेसिकली वो तीन चीज़ें अगर आपने हाईलाइट कर दी, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर अबाउट सेक्शन. And एंड आई थिंक समवेयर, सॉरी तनुषा, समवेयर no, आई you, फील ऑफेंडेड क्योंकि मेरा अबाउट बहुत बड़ा और मैंने जो कुछ भी मेंशन रखा है मैंने वो कुछ नहीं मेंशन कर रखा है. मेरा इट्स लाइक अ पोस्ट जो मैंने अबाउट सेक्शन में डाल रखा है बिकॉज एक पता नहीं दिन ऐसे होता है लाइक आई मेरे को कुछ डिफरेंट करना है सबसे. बट हाँ कि somewhere I already have थोड़ी बहुत visibility, but if someone is trying to get a job या फिर कुछ थोड़े leads लेना चाह रहे हैं, definitely follow Tanusha's and Manish's advice. क्योंकि जब मेरे को पता है अगर मैं कभी भी roles कर रहा हूँ या फिर I will look for some leads, so I will also revamp my own about. yeah. And just one more thing, just following up on what Manish said about photo. So there are apps, AI apps that can help you make very professional headshots. And one such app is Remini. So I got to know about this app from Meeti Shah. She's also, I think, a top voice only, if I'm not wrong. She's also very popular on Instagram. And दिस वॉज वन ऑफ आवर रील्स वेयर आई फाउंड दैट उन्होंने अपनी वही रेमिनाई से ही जो फोटो बनाई है वही उनकी लिंक्डइन की डीपी भी है और इंस्टा की भी. अब चेंज हो गई हो तो पता नहीं, आई एम नॉट अ स्टॉकर, बट द लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज दैट. सो वो एक ऑरेंज कलर में उन्होंने कुछ पहन रखा है. एंड ऑल्दो आप बहुत जूम करोगे यू विल नो कि यार यार हाँ एआई एनहांस्ड है. बट व्हाट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज काफी लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है कि यार हम परफेक्ट फोटो खींच नहीं पा रहे हैं. तो आपके पास जो है
आप उसको डालो उस ऐप में, वो आपको प्रोफेशनल हेडशॉट्स देगा और भी चीजें देगा, यू कैन ट्राई इट, मतलब इफ इट सूट्स वेल एंड गुड, इफ इट डज नॉट ऑफ कोर्स क्लिक अ फोटो, बट इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू ट्राई समथिंग. So just I had this in mind, thought I'll share. Yeah. गॉट इट. एंड कोई क्रिएटर मोड भी होता है क्या लिंक्डइन में, जैसे इंस्टा में तो हाँ. एक होता है, लिंक्डइन में वो भी अब ऐसा कुछ हट है? चुका है वैसे। अब वो हट चुका है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज देयर वाज अ क्रिएटर मोड. क्रिएटर मोड ऑन होने के बाद यू कैन बेसिकली डू लाइव, आई मीन आप लाइव वीडियोस पे आ सकते हो, एंड देयर वर अदर थिंग्स दैट वर अवेलेबल टू क्रिएटर्स ओनली. Hmm. बट नाउ अब ऐसा अभी कुछ तो भी नहीं है? everybody has that creator mode on, or maybe some, or maybe they have kind of removed it altogether. I'm not sure. इट वाज रिमूव्ड इन अप्रैल It was 2023। हाँ, it was more. हाँ, गॉट इट. बाय द तो वे, अगर अगर आप किसी ऑडियंस को में फॉलोअर्स दिखाने हो तो वो कैसे दिखाएं, इज माय क्वेश्चन. उसकी एक डिफरेंट सेटिंग है, लाइक मेरे को Hmm. पता है कि एक डिफरेंट सेटिंग कहीं ना कहीं है, बट हाँ वो है कहीं ना कहीं। I haven't researched on that, but just got a question. ठीक है. या हाँ, अच्छा, मतलब अभी तक कितने when the टोटल top टॉप voice का वॉइस हैं? एक वो जो wave आया था and everybody was getting top voice, so I really reached out to LinkedIn. I said कि यार मेरे में क्या क्या परेशानी है कि मुझे top voice नहीं दिया. So they said, and they actually gave me this answer that एक तो obviously मतलब जो उन्होंने बोला मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोला कि your quality of posts have drastically reduced, तो इस वजह से one is that reason, and second is they said कि see, since you were kind of featured by LinkedIn, right, so your follower might have come because of that, right, not because of your post, right, so you get a skewed गॉट इट. advantage because of that. So maybe that's also a reason that they had not kind of showered their blessings on me by giving me a blue top voice badge. So these were the पहले two आई things थिंक पहले आई थिंक 11 लोगों को लिंक्डइन टॉप वॉइस मिलता था ना नहीं, एक साल में. वो सिर्फ नेक्स्ट जेन था यार. वो एक उन्होंने ना एक थीम निकाला था नेक्स्ट टीम जेन निकाल का. दी थी, राइट. हाँ, उस था. बट वैसे जो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो 200-300 भाई लोगों उन्होंने को मिलता था, दो 200 तीन 300 सौ लोगों को बोल मिलता रखा था, है उन्होंने. अलग-अलग थीम्स के हिसाब से. बट बट नाउ मतलब maybe the number is very very big, as जो Harsh mentioned. मुझे पर्सनली, मैंने हर्ष को चेक करा, बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा था. पीपल forget about the follower count. We're not talking about the follower count here. But there are people who have not been posting good stuff. Like हमने ऐसी बहुत हाँ सारी मतलब profiles देखी हैं. Very very like not even optimized profiles. मतलब वो basic चीजें भी right नहीं है. Hygiene checks cleared नहीं है. तो मुझे तब समझ नहीं आया कि वो कैसे हो रहा है. Is my question. A हाँ, lot of people who got top boys were also from वो campus leader program. There was some program ना LCK पे क्रिएटर्स Right, KP. right. हाँ, Creators knowledge. program. हाँ, कुछ no, not था ऐसा। not see, there was one program LinkedIn for creators. उसमें तो सबको, काफी लोग को इनवाइट किया था. दैट वाज कि अगर आप अपना कंटेंट एनहांस करो, उसमें तो मैं भी थी, काफी लोग थे. देयर वाज अनदर प्रोग्राम, कुछ कैंपस करके था. कैंपस में कि बच्चे होंगे, उनको कुछ नॉलेज का पर्सन मिलेगा. उसमें से काफी लोगों को मिला था, विच ऑल्सो मेक सेंस. बट थर्ड कैटेगरी पीपल है जो दोनों में से कहीं नहीं है, या शायद उन्हें कहीं कभी इनवाइट गया पर उनकी प्रोफाइल बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, उनका कंटेंट काफी रेपिटेटिव है. या फिर वही जो दो तीन लाइन देखते हैं कि लाइक forget about the follower count. It's just कि content की quality अच्छी नहीं है. तो वहां पर गॉट इट. हमारा डाउट आया कि who is checking this? Like, is some AI giving it, or is some actual human vetting each and every profile कि इसे देना है कि इसे नहीं देना है? Is my question from LinkedIn itself also. I think it's kind of moderated by the LinkedIn News का जो उनका एक segment है, right? Sorry, there are some editors on the LinkedIn News का जो Yeah. segment, they actually check it. That's what LinkedIn has told me. But Editor checks कि LinkedIn कि देना है top voice कि नहीं देना. so there a human element is involved. That's what they have told me. But I still don't believe this. मतलब मैंने भी ऐसे profiles देखे हैं जो really I shouldn't be using the word deserve, because पता नहीं मैं भी deserve करता था कि नहीं करता था ad में आना. But then I will not use that word. But then actually basic sanity check है ही नहीं है, उसके बाद भी they have एग्जैक्टली माई पॉइंट कि हाइजीन चेक्स ही नहीं है. मतलब डिजर्विंग एलिमेंट पे तो मैं भी नहीं आ रही हूँ. हमें भी नहीं पता कि मैं डिजर्विंग हूँ, हर डिजर्विंग है नहीं है, हमें नहीं पता. हमें मिल गया, वी आर थैंकफुल फॉर दैट. बट अगर किसी प्रोफाइल पे बेसिक सैनिटी चेक नहीं है और उस प्रोफाइल को मिल रहा है, दैट जस्ट वो वैल्यू कम कर देता है उस बैच की. तो वो क्या पॉइंट है फिर कि आप दो भी और इसकी वैल्यू भी कम कर लो. इज माई क्वेश्चन नहीं, फ्रॉम जैसे लिंक्डइन. विद नो ऑफेंस इंटेंडेड टू एनीवन, एक जैसे वो येलो बैच था, वो लाइक बंद कर दिया जिसमें ना, हाँ अब बंद वो कर बंद दिया. हो रहा है दिसंबर somebody के बाद। heard भाई, somebody heard. हाँ मतलब बट लेकिन पहले वो ठीक था, पहले उसको पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट उसके बाद जैसे Exactly. ही किसी ने क्रैक किया कि ये कैसे पाना है,
आप 1 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, इट डिड नॉट मेक सेंस। मतलब आई थिंक कि थोड़ा सा उन्होंने अपने ओवरऑल बैजेस की क्वालिटी गिरा दी थी पिछले साल, तो दैट्स, और आई गेस अच्छा है उन्होंने रियलाइज किया। एंड सो उसका फिर अगर मैं फ्लॉड कॉन्सेप्ट यही था गोल टॉप को इस मैच का, सॉरी टू इंटरप्ट यू मानव, आ, नो, कि मतलब आप टॉप प्रोडक्ट मैनेजमेंट वॉइस बन रहे हो और आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पी भी नहीं पता। दैट हाँ इज लाइक द आयरनी ऑफ लाइफ, कि जो इंसान उस सब्जेक्ट मैटर का टॉप वॉइस लेके घूम रहा है वो सब्जेक्ट मैटर का हेड है ही नहीं। उस इंसान ने बस वो क्वेश्चन चैट जीपीटी पे रन करा, कॉन्स्टेंटली चीजें आंसर लिखा, दोस्तों से लाइक करवा लिया, एंड नाउ दैट पर्सन इज गोल टॉप वॉइस। तो मतलब इट्स वेरी वेरी फ्लॉड वो जिसने भी बनाया था, एंड थैंक गॉड दे रोल्ड इट बैक। हम्म। सो अब अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो तनुषा आपसे स्टार्ट करते हैं कि मान अरे लो मैं अगर कोई बहुत बोल कॉलेज रही हूँ स्टूडेंट यार, है। मनीष से स्टार्ट करो आप। मनीष को अच्छा बोलने ठीक दो है, आप। मनीष आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे अब जैसे आप तो ऑलमोस्ट आपके पास काफी एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप अपने कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आज कोई कॉलेज स्टूडेंट है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वो कौन से टॉपिक्स में लिख सकता है, और क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पर थोड़ा बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे अभी एक पॉडकास्ट में किसी और ने भी पूछा था, और मेरा आंसर पिछले 5-6 साल से सेम ही है, और मैं वापस से वो रिपीट करूंगा कि स्ट्रक्चर को अभी नहीं देखना है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन लिंक्डइन, डोंट थिंक अबाउट स्ट्रक्चर, डोंट हम्म। थिंक। देखो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं कॉलेज से अभी अभी पास आउट हूँ तो ऐसा मुझे क्या ही पता है, राइट? मुझे भी नहीं पता था, मुझे हो गए 14 साल पास आउट किए हुए सीए, तो अब मुझे बहुत कुछ पता है। बट जब मैंने सीए पास किया था तब मुझे क्या ही पता था, राइट? या मैं जब कॉलेज में पढ़ा था मुझे ज्यादा क्या ही पता था। तो अगर वो थॉट क्लैरिटी अभी नहीं है, तो अभी तो इट इज टाइम कि आप प्ले अराउंड करो, जितना ज्यादा चीजें लिख सकते हो। आई थिंक हर्ष ने बहुत अच्छी चीज बताई कि वो शिट पोस्टिंग भी करता था, राइट? शिट पोस्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से बस कंसिस्टेंट हो जाओ। शिट पोस्टिंग करनी है, शिट पोस्टिंग करो। कुछ कुछ लिखना है, कुछ भी लिख दो फिलहाल के लिए। उसके बाद देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट योर निश, कि मेरा निश एक्चुअली में है क्या। क्या हम्म। मैं सेल्स पे ज्यादा बेटर बात कर पाता हूँ, क्या मैं पर्सनल ब्रांडिंग में ज्यादा बेटर बात कर पाता हूँ, क्या मैं शिट पोस्टिंग ही बेटर कर पाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट एज ऑफ नाउ, जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग एज मच एज पॉसिबल। धीरे धीरे देन यू विल फिगर इट आउट। और लिंक्डइन में एक ऑप्शन है कि अगर लगता है कि मैंने ये पोस्ट आज से 10 साल बाद मुझे अगर रियलाइज होता है ये पोस्ट बहुत ही बकवास था, तो डिलीट कर दो भाई, क्या दिक्कत है? बट डिलीट समवेयर कर दो। आई बिलीव अगर आप अपनी 1 साल पुरानी वाली पोस्ट पे लिख देखोगे ना, थोड़े से आपको क्या सोच के लिखा था मैंने, ये क्यों हाँ, लिखा था। ऐसा लगता है तो उसको डिलीट कर दो। मैं हाँ, एक्चुअली यही कह रहा हूँ कि आपको डिलीट करने का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हो। सो अभी के लिए कुछ भी मत सोचो, अभी के लिए तो सिर्फ स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद यू विल फिगर आउट कि मेरा निश क्या है, और उसके बाद फिर यू विल बी एबल टू बिल्ड योर अथॉरिटी ओवर दैट। अग्रीड मनीष, लाइक समवेयर आई बिलीव कि देखो अभी अगर आप तनुषा से भी पूछोगे, मेरे से पूछोगे, आपसे भी पूछोगे, लाइक हम बैठ के पूरा 15-30 मिनट बात कर सकते हैं, व्हाट इज द हुक, व्हाट इज द बोनस, किसी मोर पे क्लिक करवाना है, किस टाइप की पिक्चर अटैच करनी है, कब नहीं करनी, कब क्या करना, और हम बता भी देंगे। बट चीज ये है कि आपके लिए इतने रूल्स हो जाएंगे ना कि आपको पहली पोस्ट बनाने के बाद लगेगा अरे 10 पॉइंटर है, मैंने लिखे कि नहीं लिखे। तो पहले जो जैसे मन कर रहा है जीपीटी वाली पोस्ट डालनी है, जीपीटी वाली डालो, खुद डालनी है खुद डालो, बट धीरे धीरे करके आपको जब इंटरेस्ट आएगा ना करने में, तो आप खुद कहोगे अच्छा इसकी इसने ऐसे डाला इसलिए वो करा, इसने ऐसे डाला इसने वो करा। हम्म। और वही चीज मेरे को तो लगता है जिसने भी एक ओवरऑल अपने लिंक्डइन के ऊपर अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी और जो आज के दिन तक भी कंसिस्टेंट है, देयर हैव बीन वेरी few people who followed frameworks from the start. everything everything came by practice only, कि उनको लगा कि अच्छा ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो हाँ, और कमिंग टू दैट कि आप जैसे पूछ रहे थे मनीष, सॉरी, कि आप मानो आप पूछ रहे थे कि क्या पोस्ट कर सकते सेकंड थर्ड ईयर वाला, यार मेरे को तो लगता है आज के टाइम पे कुछ बहुत सारी चीजें, अगर कोई नॉर्मल कॉलेज में है, अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में मैं किस चीज के बारे में लिख सकता हूँ, अपने कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ के बारे में लिख सकता हूँ, हाउ माई लाइफ हैज चेंज्ड। अगर मैं राइट। बाहर से आया, मैं लिख सकता हूँ मैं अपने पेरेंट्स को कितना मिस कर रहा हूँ, क्या कैसे मेरी क्लासेस जा रही हैं, मैं कैसे इस एनवायरमेंट कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे को कैसे जेलसी फील होती है। लाइक यू कैन शो योर वल्नरेबिलिटीज, अपने कॉलेज साइड के फॉर्म भरे, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, आपके इंटरव्यूज कैसे गए, व्हाट डिड यू प्रिपेयर, आपके सीनियर्स कैसे हैं, सेकंड ईयर में आपको इंटर्नशिप मिली नहीं मिली, मतलब इतने सारे फेजेस है ना, आप उसमें व्हाई हाउ क्यों करते रहे, यू विल हैव
बहुत बड़ी लिस्ट कि उसका कभी अंत नहीं है। आई स्टिल बिलीव जब बंदा कॉलेज में आता है उसने अपनी जिंदगी में 2-3 ठोकरें तो खा ली होती है कहीं ना कहीं, उनके बारे में लिख दो एंड पीपल विल रिलेट, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट डेफिनेटली। वो हाँ। कंटेंट ज्यादा रिलेटेबल होता है हाँ। जो आपके दिल से आता है, वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होता है। मैं कई बार लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, आई डोंट थिंक सो यू शुड फेक इट। हाँ। जस्ट जो दिल में आ रहा है ना वो रिलेटेबल कंटेंट लगेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी खुद बना सकता हूँ, नहीं, आप अपनी स्टोरी खुद नहीं बना सकते। आपकी स्टोरी आपकी स्टोरी तो बनी हुई है ना। आपकी स्टोरी एक्चुअली धीरे धीरे वो बनेगी, टाइम टू टाइम, राइट? देन यू विल बी एबल टू शेयर योर स्टोरी। तो आज स्टोरी शेयर अगर मुझे करनी तो इट इज मोर अबाउट कि मैंने, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मैंने आज क्या सीखा, क्या मुझे ठीक लगा, क्या नहीं ठीक लगा। आई थिंक रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं। मैं अगर बस की एक भी जर्नी कर रहा हूँ तो बस की जर्नी में मैंने क्या सीखा। तो वो छोटी छोटी चीजें अपने आप डालनी पड़ेंगी और धीरे धीरे देन यू विल बी एबल टू ग्रो। टोटली रिलेट। मतलब मैंने भी यही बताया था कि मेरी स्टार्टिंग में जब मैं लिखती थी तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी ऐसे ही, एनएसपी स्टेशन पे पिंक लाइन पे वेट करते हुए ट्रेन की, अरे मेट्रो में और लाइफ में क्या एनालॉजी है, वाह 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 वाह, और मैंने लिख दिया वो 5 लाइन की पोस्ट। मुझे क्या पता था, वो तो ऐसे ही मेरा थॉट था, वो चल गई। मतलब तब के अकॉर्डिंग 200 लाइक्स भी बहुत होते थे यार। मतलब मेरे मेरे तो वैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे होते थे। एक मेरी फर्स्ट पोस्ट पे 100 थे, वो मेरा मोटिवेशन था कि यार 100 लाइक्स आ गए, अब लिख सकते हैं कुछ, तो कोई तो पढ़ रहा है सिर्फ मैं तो नहीं पढ़ रही तो वहां से स्टार्टेड। एंड बट मेरा एक व्यू है यहाँ पे कि मैं कभी अपनी स्टार्टिंग की पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी। चाहे मुझे पता है बहुत ही फालतू है कि मैंने क्या लिख रखा है, बिल्कुल ही बुलशिट है, क्यों लिखा मैंने ये। और ये मैंने ये स्टॉक स्टॉक से फोटो निकाली, वाटर मार्क तो हटा लेती भाई मैं। चाहे ऐसे ही व्यूज क्यों ना हो मेरे अपनी पोस्ट के बारे में, पर वो मैं कभी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा रिमाइंड कराएगा कि वेर वेर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम, एंड अब मैं कहाँ पे हूँ। एंड वो हमेशा टेस्टिमनी से सब मनीष और हर्ष ने कहा कि आपकी जर्नी बन रही है, आपकी लाइफ बन रही है, तो मैं उसका फाउंडेशन कैसे हटा सकती हूँ? जस्ट बिकॉज अब मैं आज से 5 साल बाद मुझे लगेगा, अरे यार मैं अभी कैसे लिखती हूँ, मेरे को इसमें भी खामियां नजर आएंगी, मुझे 5 साल बाद लगेगा यार मैं अब बेटर लिख रही हूँ, मुझे 5 साल पहले कैसे लिखा था। बट आई थिंक दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोग्रेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल लर्निंग। तो आई थिंक टेक द ओनस ऑफ योर कंटेंट, टेक द ओनस ऑफ व्हाट इज योर्स। उसको अपना बनाओ, बाकी तो यार इम्प्रूवमेंट है, दैट्स समथिंग वी शुड वेयर एज अ बैज ऑफ प्राइड कि हमने इम्प्रूव करा है, हम आज भी वैसा नहीं लिखते, हमने बेटर बनाया अपने कंटेंट को, and उसमें वही हमारे लिए लर्निंग है। और इस चीज में ना मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा टॉपिक को डिविएट करते हुए। लॉट ऑफ पीपल से दैट फाइंड अ निश, बट मेरे को लगता है कि मैंने अब तक अपनी कोई नीश पकड़ी नहीं है। हाँ, सम माइट से दैट आई हैव अ लॉट ऑफ सीए ऑडियंस, बट अगर कोई मेरा कंटेंट रीड करेगा भी दे विल रियलाइज कि मे बी सीए ऑडियंस इसलिए बिकॉज आई एम स्टिल इन माय सीए जोन, आई स्टिल राइट अबाउट माय जर्नी की सीए कैसे चल रही है। बट समवेयर आई विल राइट अबाउट फाइनेंस, समवेयर आई विल राइट अबाउट केस स्टडीज, कभी एक्सेल पे डाल दूंगा, कभी अपनी लाइफ के बारे में डाल दूंगा। But particularly, I know as soon as I will clear my CA after 1 or 2 years, maybe साल में 5, 6, 10 एट मैक्स में सी के ऊपर लिख दूंगा, मैं कितना सी चलाऊंगा। आई नो उसके एग्जैक्टली। बाद मेरी ऑडियंस भी जो है वो सी बन चुकी होगी, वो भी अपनी लाइफ में कहीं और होगी। तो ऑल टुगेदर, तो मेरा नीश मेरा बस ये कि आई एम जस्ट शेयरिंग जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा है। बट हाँ, जैसे काफी लोगों को उसमें मार्केटिंग हो सकता है या फिर काफी को लीड जनरेशन करने, तो सेल्स ही हो सकता है कि मैं सेल्स करने के लिए आई नो कि मेरे को फाउंडर सीईओज को ज्यादा टारगेट करना है, बिकॉज दे हैव दैट क्या बोलते हैं कैश जो वो मेरे को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज सम स्टूडेंट फाउंडर्स में नॉट हैव तो आई थिंक Great. हर्ष ने बहुत सही एक पॉइंट बोला कि वो आप धीरे धीरे इवॉल्व करोगे, आप आपका कंटेंट भी इवॉल्व करेगा। एंड एक मतलब आई थिंक प्रोबेबली अ वर्ड ऑफ विजडम बोल सकते हैं या फिर नगेट्स ऑफ विजडम बोल सकते हैं, बट व्हाट आई बिलीव इज जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो उसके बाद, मतलब अगर आज तनुषा की बात करें, हर्ष की बात करें, मेरी बात करें, हम तीनों एक लेवल पे पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद फिर आपको ना थोड़े बहुत ट्रेंड्स पकड़ने पड़ते हैं, राइट? मैं बहुत टाइम तक, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा शाय इंसान हूँ, तो मैं बहुत टाइम तक अपनी पिक्चर्स नहीं डालता था, राइट? बट क्योंकि अब ट्रेंड यही है कि आपको पिक्चर डालनी ही पड़ेगी, तो अब मैं डालता हूँ, राइट? फिर स्लोली एंड स्टेडीली मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास सच में बहुत ज़्यादा कंटेंट अब बचा नहीं है, अब मैं कुछ ज़्यादा लिख नहीं सकता क्योंकि मैं 10 साल से लिख रहा हूँ, तो अब मेरे पास नहीं है। तो देन आई स्टार्टेड ऑल दी सीरीज कॉल्ड सीएज ऑफ लिंक्डइन, जिसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उनके साथ अपनी एक फोटो लगा देता हूँ कि एटलीस्ट कोई तो अच्छा दिखने वाला हो मेरे साथ, मैं तो नहीं हूँ। तो वो एक चालू कर दिया। तो धीरे धीरे वो आप सीखते हो कि यार ये ट्रेंड है, आपको करना ही पड़ेगा, बट उसका क्या एक वे आउट हो सकता है जो आप कर सकते हो। सो वो है। दैट।
थिंक आई अग्री टू दैट। मतलब हम्म। अगर लाइक तनुषा को पता है कि मैं एक हद तक मैं ऐसे था, भाई दुनिया जो मर्जी कर ले, मैं नहीं डाल रहा पिक्चर्स, मेरे पास भाई पिक्चर्स सेम। है ही नहीं। बट अल्टीमेटली मेरे को इसमें आना पड़ा, बिकॉज आई कुड सी यार, अगर मैं 5 पोस्ट डाल रहा हूँ एक बंदे के, किसी के एक फॉलो, उतने फॉलोअर्स किसी एक पोस्ट से बढ़ रहे हैं, देन आई वाज लाइक मेरे को ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। तो आई टेक प्राइड इन दैट कि अगर मैं एक कोई कोई पोस्ट फोटो के साथ डालता हूँ और कोई पोस्ट बिना फोटो के डालता हूँ, ऑल टुगेदर लाइक्स टू इंप्रेशन रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं आता। एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू विल जज कि आपका कंटेंट वर्क करे, आपकी पिक्चर वर्क कर रही है। तो हाँ। हाँ जी तनुषा और मनीष, जिसको भी आगे कंटिन्यू करना हो। मैं यही बोल रही थी कि लाइक आई वाज आल्सो वेरी ऐसे कि यार फोटोज वगैरह तो मैं नहीं डालूंगी। एंड ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है फोटोज, पर मुझे लगा कि नहीं यार, इंस्टाग्राम थोड़ी है, लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बना देंगे फिर क्या फर्क रहेगा। एंड व्हाट हैपेंड वाज कंटेंट टेक अ डिप। मीडिया तो चाहिए, अब मीडिया क्या लगाए, अब मीडिया अगर मैं गूगल से ढूंढूं तो वो भी इशू है कि मैं पहले वही करती थी कि यार से रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट फोटो लगा दिया बढ़िया, लेकिन 10 लाइक्स, 15 लाइक्स, लाइक्स छोड़ो, इंप्रेशन ही नहीं आया, लोगों तो पहुंच ही नहीं रही बात। तो अब मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के लगाती हूँ कि कॉलेज में फॉर्मल्स में खड़े हैं, फॉर्मल्स में ऑफिस में है, हम ये काम कर रहे हैं, ऐसी मैं फोटोज ढूंढती हूँ थोड़ी सी कि कम से कम कुछ तो रेलिवेंट लगे, तो मेरी ऑडियंस को क्या है यार, आई एम सीरियस टुवर्ड्स लाइफ। अब मैं ऐसे कुछ भी स्टूपिड तो नहीं डाल सकती देखो, बट आई एम वेरी सिलेक्टिव, बट यस अब मैं बिना मीडिया के नहीं डालती हूँ, चाहे मेरी शक्ल हो उसमें, बट आई हैव टू पुट से या। आप लोगों को लगता है कि अभी वीडियो कंटेंट साइड लिंक्डइन जा रहा है, बिकॉज अब तो एक अलग से वीडियो का टैब भी आ गया है, तो अब वीडियो डालना से बूस्ट होगा? बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं मुझे ऑलमोस्ट मुझे डेली फ्रैंकली अपने बहुत डर लग पॉडकास्ट रहा के है कोई अब। रील डालता हूँ। फ्रैंकली मानव, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि चलो फोटोज मैं तक तो मैं आपको पहुंच गया, अब वीडियोस मैं भी आपको करने पड़ेंगे। दैट्स मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, दैट्स गिविंग मी नाइटमेयर्स कि अब ये वीडियोस भी करने पड़ेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, तो ये कैसे हो पाएगा। हम्म, बट अगेन ये हम्म, ट्रेंड है तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे करना है। आई थिंक वीडियोस आर गोइंग टू बी प्रोबेबली द ओनली वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंटेंट ऑन एनी प्लेटफॉर्म नाउ, क्योंकि लोगों के वीडियोस आर पास एक्चुअली तो बूमिंग। मैं हाँ। आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली अभी कुछ कंसिस्टेंटली थोड़ा रील डालना स्टार्ट किया, और मेरे कुछ कुछ रील में 2 लाख 2.5 लाख इम्प्रेशंस भी हैं मेरे। एक रील में 1 लाख, कोई से रील में 2.5 लाख, इस टाइप के इम्प्रेशंस भी जा रहे हैं। और मेरे आज तक कभी पहले किसी पोस्ट में इतने नहीं गए जो नॉन वीडियो थे। नो आई या थिंक आजकल वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉरी तनुषा। सो आजकल काफ़ी ज़्यादा आई थिंक जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, एंड आई थिंक वीडियोस की वो आदत पड़ गई है, वो स्क्रॉल करने की आदत पड़ गई है कि वो 30 सेकंड 45 सेकंड का वीडियो आए तो मैं उसमें कुछ सीख सकूं। पीपल डोंट वांट टू रीड एनीथिंग, पीपल डोंट वांट टू काइंड ऑफ लुक एट एनी काइंड ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अभी वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही चलेगा, एंड इफ वही चलेगा तो वो ट्रेंड में कूदना ही पड़ेगा सबको। सो अब चाहे कितना भी डर लग रहा हो मुझे, बट करना ही पड़ेगा। या हाँ, तो यार डेफिनेटली वीडियो कंटेंट इज वर्किंग। आई हैव नॉट पुट वीडियो कंटेंट ऑन माय पर्सनल प्रोफाइल, बट आई हैंडल चैनल्स फॉर माय org also. So वहाँ पे हम बहुत वीडियो कंटेंट से एक्सपेरिमेंट करें, वी हैव गॉटन ग्रेट, लाइक ग्रेट इंप्रेशंस, 4 लाख 5 लाख ऐसे इंप्रेशंस आए हैं, एंड लाइक्स भी काफी अच्छा आए हैं। सो या वीडियो कंटेंट इज डेफिनेटली वर्किंग। प्लस मतलब हाँ, बेस्ड ऑन माय टॉक्स इन द नेटवर्क, यस इट इज वर्किंग। द ओनली थिंग इज कि आपका एंगेजमेंट रेट बहुत ड्रॉप होगा, बिकॉज आपके इंप्रेशन तो आएंगे इतने सारे, लाइक्स आएंगे, हम्म। रिपोस्ट आएंगे बहुत कम, सो आपका एंगेजमेंट रेट बहुत ड्रॉप होगा उससे। बट आई थिंक इफ इट्स रीचिंग देन इट्स फाइन। बट आई स्टिल बिलीव कि जो रिटर्न टेक्स्ट वाली ऑडियंस है वो आज भी जिंदा है। अभी आप हम में से ही देख लो, हमारा जो क्रिएटर नेटवर्क है, कितने ही लोग वीडियो डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं लोग। इसके ऊपर पता है, कहीं हम्म। ना कहीं आई बिलीव, जैसे अगर आप ट्विटर ले लो, ट्विटर पे भी आई गेस ये रील्स वगैरह का है, बट लोग अभी भी लिखने वाली चीजों को देख रहे हैं, तो आई थिंक वो लिंक्डइन पे भी रहेगा। बट वो कहीं ना कहीं रहेगा। बीच में शिफ्ट मारना पड़ेगा। बट मैं तो इसमें कम से कम अगले 2.5 साल तो नहीं आ रहा, अगले 6 महीने बाद तो कहीं ना कहीं प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक फॉर सीए फाइनल्स, क्योंकि हाँ, हम्म। कंटेंट क्रिएशन वो है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग है। मैं इस चीज को बिल्कुल एडमिट करता हूँ, और अगर इसको हम्म। सही टाइम पे ना छोड़ा गया, पता चले मेरा सी में टेम्प्टी लग गया। भाई महीने में एक बार लिख लो, तेरा टॉप पर चला जाएगा।
One original What? post is, yes, you didn't read the mail. अरे हाँ यार, क्या भाई If you do क्या है not बोला क्या था? टॉप post, वाइज वापस चला जाता है अगर आप yeah, कंसिस्टेंट नहीं रहो तो? so blue turquoise भाई वो दो उनकी वजह से गाइडलाइंस कहती हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ टॉप वॉइसेस जिनका नहीं गया, बट हाँ, दैट्स अ शरण गुड हेज का चला रिमाइंडर, गया था थैंक यू। सर, शरण हेज का चला गया था किसका? वापस, शरण हेज, यही ना, शरण है, हेज अच्छा है, हेज, आई डोंट नो अच्छा हाउ टू नहीं प्रोनाउंस। अच्छा, हाँ शरण शरण है। है, हाँ, वो सॉरी, फाइनेंस विद नॉट हेज, शरण। सॉरी, hedge fund, sorry, no. I forgot मैं कह रहा how शरण to. कौन Sorry, sorry, है? sorry. I शरण भी was लाइक, talking. शरण भी सेइंग लाइक क्या फूक क्या ये बे। नहीं, वो भाई वो फाइनेंस की भाई बात ही मजाक करता ही नहीं है। कर रहा, अगर वो देखता है ना, इसका भी कुछ हेड फंड पे एडवर्टाइजमेंट बना कर डाल देगा। Exactly, वो हेज फंड की बात करता है, so I think it matches. But yeah, शरण द क्रिएटर, उसका टॉप वॉइस आया था और चला गया था, अब रीजन मुझे याद नहीं है, बट गया था। तो लिंक्डइन की मेल में यार, तो अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करी, या आपने अगर हर महीने एक ओरिजिनल पोस्ट नहीं निकाला, मतलब रीपोस्ट इज नॉट काउंटेड, ओरिजिनल पोस्ट नहीं निकाला, तो आपका टॉप वॉइस वापस चला जाएगा। अरे ओह, यार, बट चल ठीक है, एक पोस्ट। थैंक मी फॉर इन्फॉर्मिंग यू। मेरे को ये चीज याद थी, बट मैं इस चीज को इतना सीरियस नहीं ले रहा था, आई थॉट लिखने लिखने के लिए, बट ठीक है, विल ट्राई टू, मतलब एक पोस्ट बना लेंगे महीने के, थोड़ा सा हाँ, एक सेल्फ पोस्ट के लिए कंट्रोल लाना टाइम। पड़ेगा बिफोर बिकमिंग अ प्रॉपर बाबा। हाँ हाँ, अच्छा अरे एक पोस्ट हो एक सकता है। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पोस्ट डाल रहा है जिसमें एक तरह से वो, जैसे इंस्टाग्राम में बोलते हैं ना, फोर्स कोलैबोरेशन, मतलब गेटिंग वायरलिटी इन समवन एल्स पॉपुलैरिटी, तो क्या ये मतलब सही है? क्या इससे कुछ लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई थिंक इट्स ओके। मुझे आई क्वेश्चन थिंक समझ नहीं मैं तो आया। अभी वही कर रहा हूँ, मतलब आई आई हैव स्टार्टेड फिनटेक फाउंडर्स ऑफ लिंक्डइन करके एक सीरीज चालू करी है, wherein I am sharing the stories of all the big fintech founders. तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू कैन यूज योर नेटवर्क टू काइंड ऑफ गिव देम दैट काइंड ऑफ लाइमलाइट, और मे बी यूज देयर लाइमलाइट फॉर योर फॉलोअर्स, वो ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, तो करना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट। हम्म। और तो या आई थिंक कोलैबोरेशन, सी आई ऑलवेज बिलीव दैट कंपटीशन करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, इससे बेटर है कोलैबोरेट कर लो, और अगर कोलैबोरेट अग्री। करने के टूल्स अवेलेबल हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, सो व्हाई नॉट। हाँ, मतलब it's good only to talk about people in network. One thing which I've commonly seen is there are a lot of people who have grown their profiles just या by doing this. ट्रू। एंड वन थिंग विच, मतलब मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है कि आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम का आपका नॉवेल्टी कुछ नहीं रह जाती अगर आप सिर्फ यही कर रहे हो तो। हाँ, मतलब समटाइम्स यू आर ऑफ कोर्स टॉकिंग। डोंट डिपेंड ऑन दैट। डोंट डिपेंड एग्जैक्टली। ऑन, हम्म। राइट सो राइट। लाइक आप टाइम टू टाइम, जैसे वन ऑफ आवर फ्रेंड्स याशी, उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की थी मेरे फ्रेंड्स की, बनियाज ऑफ लिंक्डइन, एंड दे टॉक्ड अबाउट अमन गुप्ता एंड ओला के कौन से फाउंडर है, रितेश है ना, उनके बारे में। भावेश दैट्स गुड। अग्रवाल। या, सो उन लोगों ने अलग अलग निकाली थी, एंड वन ऑफ देम आल्सो टेक्स्टेड रितेश एंड ही आल्सो रिप्लाइड बैक। नाउ समटाइम्स यू आर डूइंग इट, दैट्स ग्रेट, लाइक अभी मनीष ने कहा कि उन्होंने फिनटेक के बारे में स्टार्ट किया, इट्स ग्रेट। समटाइम्स इवन आई टॉक अबाउट पीपल हु इंस्पायर मी। आई पोस्टेड अबाउट निहारिका कौर सोडी बिकॉज मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया था, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय हर, सो आई जस्ट पोस्टेड अबाउट इट। समटाइम्स इट्स फाइन, बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑल्सो बिकॉज उनकी उनकी नॉलेज भी बढ़ रही है, उनके बारे में भी लोग ज्यादा जान रहे हैं। बट आई थिंक सिर्फ अगर आप, मतलब मैंने ऐसी प्रोफाइल्स देखी हैं जो लोग सिर्फ दूसरों के बारे में बता के ही लिख रहे हैं। आई फाइंड इट अनोइंग ऑल्सो बिकॉज लाइक आई थिंक what आई is नो your. हु यू आर टॉकिंग अबाउट। Okay, I'll not take names because it's getting recorded. But ठीक है what I ठीक mean है। to say is कि थोड़ा सा नॉवेल्टी आनी चाहिए भाई अपने कंटेंट में, कि अगर आप एक्स हो तो एक्स क्या है, अपने बारे में बताओ ना, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ, व्हाट मेक्स यू यू, मतलब यू, इट्स गुड यू अप्रिशिएटिंग पीपल, बट व्हाट मेक्स यू यू इज मिसिंग, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक that's not good as for me, that's my opinion. Some people might आई थिंक find it. इसको ना दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक है कि आप कोलैबोरेट कर रहे हो जस्ट Hmm. बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, लाइक आपको उस आदमी या फीमेल के प्रति कुछ ऐसा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कि मेरे को इसके प्रति कुछ इज्जत है, फिर मैं इससे कुछ मानता हूँ, बट आपको पता है इसके साथ किस तरह के साथ पोस्ट आ गई, मेरा कंटेंट जाएगा, तब रहने दो। बट Exactly. अगर इफ देयर इज समवन जिसको आप एक्चुअली एडमायर करते हो, जिसका काम Definitely. आपको पसंद है, कि चाहे आपको है कि लाइक्स ना आए या ना आए, बट यू एक्चुअली एडमायर दैट पर्सन फॉर हिज और कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमी, या जो भी उनकी फील्ड हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज पोस्ट करो। अगर आप उसमें भी सोच रहे हो और यार लोग समझेंगे कि मैंने उस सिर्फ लाइक से लेकर, यार यार एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छा लगता है लाइक, और अगर आ भी गया तो फिर क्या हो गया, क्या दिक्कत है?
तो वही ना यार, मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो आपको एक इंसान पसंद होगा, दो, आपको सारे पसंद नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। हाँ। फिर वो पढ़ना थोड़ा रॉन्ग है। हाँ तो जी। एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट हैशटैग्स, मतलब क्या हैशटैग से फर्क पड़ता है किसी पोस्ट अब में? नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता। इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे फ्रैंकली अब बिल्कुल नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसा यूजफुल लगता है कि अब बिल्कुल भी नहीं है। पड़ता। देयर वाज अ टाइम जब थोड़ा बहुत यूजफुल होता हाँ था, व्हेन देयर वाज अ को क्रिएटर वाला ऑप्शन ऑन होता था और आप हैशटैग यूज करते थे कि मैं किसके बारे में बात करता हूँ। अब जब से वो बंद हुआ है तब से आई थिंक हैशटैग्स आर नॉट यूजफुल वो तो एट ऑल। हैशटैग्स डालने की ऑनेस्टली मेरे को तो बस ऐसे आदत ली है, कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हैशटैग लिंक्डइन, हैशटैग एनर्जी, एग्जैक्टली, हैशटैग प्रोडक्टिविटी, वो तो बस डालने की आदत है, बट आई एम नॉट श्योर कोई वो पढ़ता भी कितना है काम हैशटैग से। तब फायदा है कुछ स्पेसिफिक कैंपेन चल रहा हो और एक हैशटैग पॉपुलराइज हो रखा है, तो आई एब्सोल्युटली, थिंक दैट्स तब देन कर इट्स सकते ऑलराइट, बट वैसे आई एम आई नॉट श्योर। थिंक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था राइट, तो उनका जीएफएफ 2004 करके 2024 करके एक हैशटैग था। दैट वाज अ गुड हैशटैग जिसको यूज कर सकते हो, बिकॉज उससे एक डिस्कवरेबिलिटी भी आती है और विजिबिलिटी भी आती है। बट अगर हाँ ऐसे ही कुछ प्रोडक्टिविटी हैशटैग लेने ये यूज करना, तो देयर इज नो पॉइंट यूजिंग दैट एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में बता रहा हूँ। But I think one take that I have on hashtags also is that create your own hashtag. I think like for me na, if I take out post on marketing, so मैंने hashtag create था marketing by TA, capital TA, ऐसे मैंने create किया था। अब वो कोई और यूज नहीं करता, पर वो hashtag लिखते ही मेरे पास मेरी सारी marketing की post आ जाती हैं। So it's kind of acts as a repository also, and it also is कि कभी कोई marketing search करेगा उसे मेरी post दिख जाएगी। रैंडमली भी सर्च कर रहा है, उसे इंटेंट से भी सर्च नहीं कर रहा। तो आई थिंक अगर आप अपना हैशटैग बनाओ, जिसना आई थिंक वन मोर क्रिएटर डज इट, आई थिंक अलीजा अलीजा शामजी आल्सो डज इट, ड्रीम्स एंड डाउट्स करके कुछ चलाती है वो, उसने मैंने अपना बना रखा मैंने है। आज से कुछ 3-4 साल 5-6 साल पहले एक चालू करा था। आई थिंक मुझे वापस से रिवाइव करना चाहिए, वो कॉल्ड स्ट्रैटेजी वाला। मैं काफी स्ट्रैटेजी रिलेटेड पोस्ट डालता था। एग्जैक्टली। तो आई थिंक लाइट बल्ब मोमेंट है ये, मुझे करना चाहिए, आई थिंक वापस से रिवाइव करना चाहिए। तो आई थिंक उसका दोनों मोटिव है, एक तो कि देयर इज अ हैशटैग विच स्टैंड्स फॉर यू, इट इज योर, इट इज यूनिक, इट इज नॉट ऐसे जनरलाइज्ड। सेकंड इज ऑल्सो हेल्प्स यू फाइंड योर पोस्ट इन रिपोजिटरी। कोई कभी आपको ही बोले यार कि मुझे कि सिर्फ आपकी मार्केटिंग की पोस्ट पढ़नी है, तो ठीक है यार, मेरा हैशटैग डालो तुम्हें मिल जाएंगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, मतलब हाइजीन पर्सपेक्टिव से गॉट मतलब इट। मैं मतलब करती कैटेगराइजेशन हो जाता है पोस्ट पर्सनल का। हैशटैग्स, आई पर्सनल हूँ। मतलब हैशटैग्स। हाँ दिस इज अ पर्सनल गुड हैशटैग। रिकमेंडेशन की जैसे मेरी भी काफी पोस्ट्स हैं, बट मेरे को बार बार ढूंढने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, लाइक आई कैन जस्ट राइट कि आप ये हैशटैग सर्च कर लो मेरे नाम से तो आपको मिल जाएगा। गुड या गुड रिकमेंडेशन, आई विल डू दैट। हम्म। यू वेलकम। आप लोग कौन सा एआई टूल को यूज करते हो मतलब पोस्ट राइटिंग के लिए? जीपीटी जस्ट टू चेक, बस एक वो ग्रामर चेक करने के लिए। आई चेक, आई यूज ग्रामरली, कभी कभी ग्रामर चेक है। मैं मेरा ऑटो एनेबल्ड भी है, तो मैं कुछ भी ऐसे लिख रही हूँ गलत तो लिंक पे तो वो रेड रेड हो जाता है नीचे, तो पता लग सेम जाता ईयर, है। ओके। सेम ईयर। मैं हाँ भी ग्रामरली कीबोर्ड यूज करता हूँ, मुझे आदत पड़ गई ग्रामरली कीबोर्ड यूज हाँ। करने की। तो वो रेड रेड हो जाता है, तो उसी वक्त आप ठीक कर देते हो। कभी आई थिंक बहुत ही ऐसे मैं स्टक हूँ, एंड इट्स अ ब्रांड कोलैबोरेशन, कि मेरे को थोड़ा हम्म। कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एंड आई वांट सम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आई यूज जेमिनाई, एंड इट गिव्स मी एन इनसाइट कि अच्छा यार इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, देन आई टेक फॉरवर्ड ऑन माय अपने थॉट्स ऑन दैट। तो वहां के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव यूज्ड एक दो बारी, वो भी व्हेन आई फील स्टक कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, बिकॉज खुद के कंटेंट में आपको कॉन्टेक्स्ट होता है, आप वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, पर अगर आपको कोई एक ब्रीफ दिया हुआ उस पर कभी कभी आपको उस अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ती तनुषा हैं। एक चीज सो पूछो, कुछ कितना कमा रही है ब्रांड कोलैब से? तुझसे तो कम कमा रही हूँ मैं, चल वे। मैं करता भी हूँ। तू मैं जितने मेरा कर लेता है ना, तू जितने कर लेता है तो उसी में बहुत चार्ज कर लेता है बेटा। अच्छा मेरे ऐसा है। डिस्कशन में है ये पॉइंट, मेरे डिस्कशन में मैं तीनों के कमर्शियल्स पे आऊंगा। मैं वही पूछ रहा था कि um, ब्रांड कोलैब्स ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं म- ये क्या मेरे को होता बता है। देना क्वेश्चन कब आ रहा है, मेरे तब जाने का टाइम हो रहा है, ठीक है। मेरा मेरा आंसर तो वही है, कोई ब्रांड नहीं जा कोलैब्स रहा क्या तब होता है तक। मुझे नहीं पता। सो अरे अरे कॉल आ रही है मेरी, एक्सक्यूज मी जरा। अगर मैं किसी और बाकियों के पोस्ट में कमेंट कर रहा हूँ तो क्या उससे मेरा प्रोफाइल कुछ बूस्ट होता है? और क्या ये, जैसे मैं देखता हूँ कोई अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है लिंक्डइन में, वो हर एक किसी के पोस्ट में कमेंट भी करने लग जाएगा और कुछ भी अप्रिशिएट करना, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देगा, मतलब काफी सिंपल सिंपल। तो अब क्या ये कमेंटिंग भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखो अगर सामने वाले का ब्रांड कोलैब है, प्लीज डू इट। आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, आप एक नेक काम कर रहे हो, आपको दुआएं मिलेंगी। सो आई थिंक तनुषा अग्रीड, कहना तनिष्का चाह सर रही भी है बोल रहा हूँ किसी ने कि एक दिन पहले अगर अपनी ब्रांड ब्रांड से कोलैब है कोलैब तो ठीक किया है, है, उस कुछ पर भी जाके करके कर दो, कमेंट मतलब करो। उससे थोड़ा बहुत तो
फायदा होगा, एटलीस्ट उसको तो फायदा होगा और आप अच्छा काम हाँ कर रहे हो। दूसरा, अगर कमेंट करना ही है तो यार थोड़ा मीनिंगफुल कमेंट करो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं एग्जैक्टली। कि 50 कमेंट्स करने हैं, 5 ही कमेंट्स करो, बट इतने बढ़िया। मैंने, अच्छा आई विल टेल यू, मेरे साथ कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि माय कमेंट हैज गार्नर्ड मोर लाइक्स देन द पोस्ट, ओके। ओह गॉड फ्लेक्स। और जब भी मैंने मीनिंगफुल कमेंट किया ना, वो एक्चुअली चला है। जब भी मुझे लगा ना कि यार ये कमेंट करना चाहिए, उसको मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, कॉन्टेक्स्ट लिया पोस्ट से, उसके बाद जब मैंने पोस्ट किया वो चला है हमेशा। मतलब ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ कि मैंने कोई मीनिंगफुल कमेंट एक्चुअली में किया हो और नहीं चला। सो आई थिंक मीनिंगफुल कमेंट करने चाहिए। डेफिनेटली। और ना मैं इस पे ना बस एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक मैं इसको एक कमेंटर के परस्पेक्टिव से बट फ्रॉम अ क्रिएटर परस्पेक्टिव बताता हूँ। लाइक अब थोड़े डीएम्स की फ्रीक्वेंसी है एंड इट बिकम्स थोड़ा डिफिकल्ट टू गेट बैक टू ऑल ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं आई रिमेम्बर कि एक किसी ने ना कमेंट किया था मेरी पोस्ट पे 3-4 महीने पहले, बट इट वाज वेरी ऑथेंटिक, गुड फीडबैक एंड गुड एप्रिसिएशन एज वेल। बट यूजुअली मेरा क्या होता है, एवरी संडे आई डू दिस सेशन रात में where people can come and ask their doubts on a Zoom call, but उनके साथ आई शेड्यूल्ड वन सेशन पर्सनली ऑन गूगल मीट, और मैंने उनको पूरी लाइक 7-8 मिनट का था प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बट इट इज नॉट समथिंग कि मैं यूजुअली करता है, और उस दिन थोड़ा सा चल रहा था काम धाम इधर उधर। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक्चुअली लाइक, मैं ये नहीं कह रहा आप आके मेरी पोस्ट, तनुषा की पोस्ट पे ऐसे कमेंट करने लग जाओ, बट अगर आपके पास जेन्युइनली कुछ ऐड करने को है किसी की पोस्ट में, और प्लीज यार जीपीटी से कमेंट करना छोड़ दो, जितना आपको लग रहा है कि वाह 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 बहुत बड़े कमेंट हो रहे हैं, सबको दिख एक मेरे जाता है। सामने कमेंट ला के रख दो, मैं बता सकता हूँ जीपीटी पे से आया है या नहीं आया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट्स पता व्हाट पड़ आई जाता है। ये हाँ तुम्हारे जी। डीएनए में आ चुका है कि ये एआई है कि नहीं है, ये है, ये है, ये हाँ नहीं है। एक्चुअली राइट, लाइक मतलब एक कॉमा जिस हिसाब से चीजें लिखी जा रही है, लाइक यू नो समटाइम्स आई एक्चुअली डू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ, लोगों को लगा जीपीटी से लिखा। भाई जैसे अगर अगर कॉमा के बाद एंड से पहले कॉमा है, मतलब माय ग्रामर ने गॉड। ठीक करा है। ये तुम भाई नहीं लिख हाँ, सकते। हाँ एक्चुअली मेरे को ये चीज नहीं पता थी, और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं पता है। जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे ब्रैकेट्स हैं, आपने ब्रैकेट्स हाँ ओपन करे, ब्रैकेट्स बंद होने के बाद अगर फुल स्टॉप आ रहा है ना, वो जीपीटी से गुजरा है भाई, कि कौन बंदा लगाता है फुल स्टॉप ब्रैकेट क्लोज करने से पहले। मैंने कहा इतनी ग्रामेटिकल ग्रामर चेक तो मैंने कभी नहीं किया। एग्जैक्टली। और हम एग्जैक्टली कमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यार हाँ मतलब मेरा भी ठीक है कि अगर आप कर रहे हो तो कोई अच्छा कमेंट करो, अपार्ट फ्रॉम कोलैब जहाँ तक सपोर्ट कर रहे हो अपनी कम्युनिटी को, भाईचारा हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप ऐसे अपने हमारे ओरिजिनल पोस्ट पे देख रहे हो तो मतलब जस्ट डोंट से कि अरे नाइस डियर, थैंक्स, गुड नाइट। मैं गुड नाइट किसने पोस्ट पे गुड नाइट लिखा? मैंने कहा मतलब मैं वेरी मॉर्निंग में गुड। पोस्ट कर रही हूँ, और यू अनुषा, ये पर्सन। हमारे 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 पोस्ट में नहीं आता नाइस पिक और हमारी पोस्ट, मेरी पोस्ट में गुड नहीं नाइट, आता। ये तो नहीं आता, नाइस पिक बट नहीं, गुड नाइट, थैंक्स डियर, गुड नाइट। मैंने कहा भाई ये तो क्या ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट सेइंग इंसाइटफुल, वाओ, अमेजिंग, इससे आगे बढ़ो यार, मतलब जस्ट गिव अ पर्सपेक्टिव, आई थिंक पर्सपेक्टिव ठीक ओपन है करो। तनुषा, मैं समझ गया, कोई मैं रूपाली एग्जांपल दो से गया, तनुषा, ठीक है। कोई एग्जांपल दो। मान लो आपने कोई हम्म। पोस्ट देखा था जिसमें आपने कुछ अच्छा इंसाइटफुल वर्ड से आगे कमेंट किया। यार सो बेसिकली नॉर्मली आप किसी भी क्रिएटर का पोस्ट देखोगे वो एंड करेगा हमेशा क्वेश्चन के साथ। नॉर्मली अच्छे पोस्ट हमेशा क्वेश्चन के साथ एंड होते हैं कि यार व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। या फिर जैसे मैंने पोस्ट किया कि मेरे पास कन्वेंशनल पीओआरस नहीं थे, मैंने अनकन्वेंशनल ये 3 चीजें की, अगर आपने भी किया तो आप अपना बताओ। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ एन आइडियल कमेंट इज क्या, थैंक्स फॉर एडिंग दीज, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि ये भी अनकन्वेंशनल पीओआर है, या फिर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव शोन दिस। या फिर अगर तुम्हारे पास नहीं भी ऐड करने के, यू कैन ऑब्वियसली थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, आई हैव एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम इन सो एंड सो वे, बट समथिंग व्हिच एड्स टू द कन्वर्सेशन एंड थोड़ा सा लगे कि मोर देन जस्ट अ वर्ड, आई थिंक मोर देन जस्ट अ वर्ड, अ सेंटेंस आल्सो वर्क्स, बट आई एक थिंक एक समथिंग। हम्म। सॉरी तनुषा, एक एक हैक मेरे दिमाग में आया जैसे ही अभी हम्म। तनुषा ने बात करी। ये मैंने क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ एंड आई वांट मोर लाइक्स ऑन दैट कमेंट, हम्म। तो मे बी यू कैन, आई वुड से अ नेगेटिव कमेंट। व्हेन आई से नेगेटिव कमेंट, लेट मी थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करता हूँ कि अगर तनुषा लिख रही है कि उसने अपने पूरा एक पोस्ट बनाया ऑन व्हाट आर हर थॉट्स ऑन फाइनेंस, राइट? तो मैं एक नेगेटिव कमेंट कर सकता हूँ उसके ऊपर कि ठीक है आपने जो बोला वो ठीक है फाइनेंस के बारे में, लेकिन मुझे लगता है फाइनेंस
सबसे बुरी चीज है, सबसे बेकार चीज है, राइट? तो एक नेगेटिव कोनोटेशन अगर आ जाता है कमेंट के अंदर तो उसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो मैंने डेफिनेटली श्योर में डरते हुए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेटली नेगेटिव पे आते हैं। आप लोग बताइए कि अगर कोई ट्रेंडिंग चीज चल रही है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं और उस पे कोई एकदम ही बोल्ड या स्ट्रॉन्ग व्यूज ले, सो क्या ये एक सही स्ट्रेटेजी है लिंक्डइन में आगे जाने के लिए? यार अगर स्ट्रैटेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो येस इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप एक बोल्ड व्यू लो, यू विल गेट मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स, मोर आई बॉल्स वुड बी ग्रैब। बट देन आई स्टिल बिलीव कि जैसे वो टॉक्सिक वर्क कल्चर चल रहा है आजकल, राइट? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इंटरनेट शुड बी अ हैप्पी प्लेस यार। ठीक है, एक कोई गलत एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करो, बट देन उसको इसलिए मत करो कि यार मुझे उससे लाइक्स मिल रहे हैं, राइट? अगर आप सिर्फ इसी वजह से कर रहे हो कि मुझे लाइक्स मिलने वाले हैं तो फिर तो आप खुद भी टॉक्सिक हो, राइट? तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि यार लेट इंटरनेट बी अ हैप्पी प्लेस। जितनी हैप्पीनेस हम लोग, वैसे भी लाइफ फक्ड अप है 90% लोगों की, उनके वर्क लाइफ बैलेंस फक्ड अप है, तो क्यों ऐड ऑन करना है उसके ऊपर कि आप एक एकदम ही अलग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, जिससे एंड आप इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको लाइक्स चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। बाकी हर्ष, व्हाट डू यू थिंक? फॉर देयर ओन, एवरीबॉडी नोज कि उसको क्या करना है, बट आई थिंक किसी की डेथ हो गई या कोई वर्क कल्चर के बारे में बात कर रहा है, वो वाले टॉपिक्स तो जितना कम छेड़ो ज्यादा बेटर है। बाकी इतने सारे टॉपिक्स, इतनी सारी बातें बोलने के लिए, व्हाई नॉट यूज दैट? एग्जैक्टली मतलब मेरा भी यही व्यू था कि आई गॉट टू नो अबाउट द ईवाई इंसिडेंट ऑफ एना मैथ्यूज इवन बिफोर लिंक्डइन स्टॉर्म्ड ऑन इट। मेरे को 2 दिन पहले ही somebody shared in one of our groups and I read the entire letter and I was very heartbroken. I could have put it on LinkedIn right away and would have been the first person who's bringing it on the platform, garnered a lot of views, lot of likes, lot of lot of remorse from people because that's what people do. बट मेरे दिमाग में कभी थॉट आया नहीं यार कि इसको लिंक्डइन पे भी डालना है, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू पुट समथिंग लाइक दिस ऑन लिंक्डइन इन योर लिंक्डइन? ओके, मतलब दिस इज नॉट ऑल एथिकल, नॉट ऑल मॉरल आल्सो आई थिंक। फिर मैंने देखा अगले दिन, उसके बाद मेरा एक हफ्ते तक लिंक्डइन भरा रहा, एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग टॉक्सिक कल्चर। सी आई थिंक द बैड पार्ट इज दैट आपको किसी की फर्स्टली डेथ लगी ये टॉपिक लाने के लिए, और अब आप उसी इंसान के बारे में हर इंसान मेंशन कर रहा है। जस्ट इमेजिन द फैमिली ऑफ दैट पर्सन, they have to go through that post again and again, again and again. People are using their family members name to garner views. That's what people are doing. That's the harsh reality. किसी को किसी से दुख नहीं होता यार, हर कोई सिर्फ एक ट्रेंड चल रहा है, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हमें भी व्यूज मिल जाएंगे, फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बड़ा दुख है जी हमें, तो हम तो लिख देते हैं। तो मुझे मतलब बिल्कुल ही, मतलब मेरे को तो बहुत ही शिटी लगता है प्रो, इसलिए मैंने शायद इस चीज पे कुछ बोला भी नहीं। आई हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग अबाउट दिस। आई थिंक पोस्ट कर भी सकते हो आप, तो उसका एक तरीका होता है कि आप अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो। don't mention an organization, don't mention the person, mention what is your take on it that can actually help people. Like if you can, like इस सिचुएशन में कोई इंसान क्या कर सकता है इसकी, you can mention the ways to reach out to people for help. How can you actually voice your concern? How can you actually, जो प्रॉब्लम थी उस लड़की की, एक्चुअली आप उस प्रॉब्लम पेन पॉइंट को एक आम आदमी उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करके सोल्यूशन दो लोगों को, जो एक्चुअली हेल्पफुल है। भले ही शायद उसमें रीच अच्छी ना आए, पर वो किसी के लिए हेल्पफुल होगी। जो इंसान शायद उसी स्थिति में होगा, वो आपकी पोस्ट पढ़ के शायद किसी से बात कर पाए। सिर्फ किसी के बारे में सेम सेम उस मेरे उनकी जो को तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इसको देखना है कि किसने व्यूज के लिए या किसने नहीं किया, आप उसका 6 महीने पुराना कंटेंट देखो। अगर सिमिलर लाइंस पे, देन आई फील ओके, दिस इज नॉट द फर्स्ट न्यूज दैट ही और शी हैज टेकन अप। बट अगर अचानक से पहले बातें हो रही थी किसी और चीज की, पहले बातें हो ही नहीं रही थी, अचानक से इसी चीज के बारे में 1 हफ्ते तक बातें हो रही हैं, देन यू नो कि व्हाट्स द प्राइमरी इंटेंट, लाइक whatever happened that was tragic, should not have happened. या बट जिस तरह से सोशल मीडिया पे यूज हो रहा है, लाइक अवेयरनेस पार्ट कुड हैव बीन बेटर, लाइक इस पे ज्यादा क्या बोल सकते एंड हैं। वैसे भी एब्सोल्युटली। यार, मतलब इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, बट पीपल ऑलवेज नीड अ ट्रेंड so that they can make the most out of it.
दैट्स द फैक्ट. हम्म, तो आई थिंक इस केस एब्सोल्युटली. में मॉरल वैल्यूज शुड रिमेन अपटाइट. हाँ, आई विल टोटली एग्री तनुषा, जो आपने लास्ट में कहा कि मोरल शुड बी अबव ऑल दिस. अब अगर हम वापिस से इसी पोस्टिंग एंड ऑल में हो, तो अगर मान लीजिए अभी कोई स्टार्ट कर रहा है, वाना बी क्रिएटर, जिसको लिंक्डइन टॉप वॉइस बनना है, तो आपने बता दिया कि पोस्ट में उनको ज्यादा टेक्निकल से ज्यादा ओरिजिनलिटी में जाना चाहिए, तो कितना एटलीस्ट ड्यूरेशन में नॉट थोड़ा पोस्ट सा तो करना सैड चाहिए? सैड हो गया गाइस, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ सारे प्लीज जैसे. हाँ कितने ड्यूरेशन में पोस्ट करना चाहिए? वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, या डेली पोस्ट करना चाहिए? हर्ष, व्हाट डू यू थिंक? यार, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि तुम जितना पोस्ट कर पा रहे हो शुरुआत के 5-10 हजार फॉलोअर्स तक, मैं सोचो पोस्ट करते रहो. लाइक डोंट मेक अ रूल मेरे को 6 पोस्ट करनी है. लाइक इट्स गुड टू हैव टारगेट्स, इट्स गुड क्या अगर आप करना, बट इफ इट जस्ट सीम्स सो मच कि मेरे से इतना नहीं हो रहा देन लेट इट बी. बट पोस्ट करते रहो, जब मन करता है करो. लाइक मेरे को नहीं लगता शुरुआत के 50-100 पोस्ट में कोई ऑनेस्टली पढ़ता भी है. ट्रू. आई मनीष, थिंक. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक तनुषा, यू कैन अग्रीड प्लीज. विद हर्ष कि ऐसा कोई टारगेट अभी इनिशियली तो मत लेके चलो, बाद में यू कैन फिक्स सम टारगेट कि मुझे डेली पोस्ट करना है, कि मुझे हफ्ते में एक बार करना है, वट एवर इट इज. बिकॉज सी आपको एल्गोरिथम के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा. एट वन पॉइंट जब आपके 10-20 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको एल्गोरिथम के हिसाब से काम करना पड़ेगा. तो यू नो कि मेरा सुबह 9 बजे ज़्यादा अगर इंगेजमेंट आता है तो 9 बजे आप अपने पोस्ट करना स्टार्ट करोगे. बट इनिशियली व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग द एल्गोरिथम, तब आई थिंक जितने ज़्यादा पोस्ट कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन रिस्ट्रिक्टिंग कि मुझे एक ही करना चाहिए या फिर 6 करना चाहिए. मतलब वो रूल अभी मत बनाओ. अभी तो आप सिर्फ पोस्ट करो, जब भी आप पोस्ट करना चाहते हो करो. उसके बाद फिर आपको पता पड़ जाएगा कि अब मुझे मेरे ज़्यादातर पोस्ट सुबह 10 वाले चल रहे हैं कि रात के 10 बजे वाले चल रहे हैं, राइट, या शाम के 5 बजे वाले चल रहे हैं. तो फिर उसके बाद फिर यू कैन क्रिएट दोज रूल्स फॉर योर सेल्फ कि मुझे इस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, इतना पोस्ट करना चाहिए. बट इनिशियली आपको रूल्स फॉर्म करने के लिए आपको एज मच एज यू वांट और एज मच एज यू लाइक वो पोस्ट करना चाहिए, विदाउट लुकिंग एट द टाइम, विदाउट लुकिंग एट द नंबर इनिशियली. बाद में फिर when the algorithm has been trained, then use that trend और use that algorithm. उसके बेसिस पे आप पोस्ट करो, उसके बेसिस पे टाइमिंग सेट करो, बट पहले ये मत करो. तनुषा, तनुषा, एक और चीज आप इसमें बताना कि अगर मान लो मैं आज 2 बजे पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कल 3 बजे कर रहा हूँ, परसों मैं रात के 10 बजे कर रहा हूँ, सो डज इट मेक एनी डिफरेंस? ऑफ कोर्स टाइमिंग मेक्स अ डिफरेंस, बट आई वुड से कि हर रोज नए टाइम पे करने का कोई पॉइंट नहीं. आप एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे कि क्या वर्कआउट कर रहा है क्या नहीं कर रहा. सो थोड़े टाइम तक आप एक ही पैटर्न फॉलो करो. एंड देन व्हेन यू चेंज द पैटर्न, सपोज आपने फर्स्ट 15 डेज एक टाइम पे पोस्ट करा, नेक्स्ट 15 डेज अलग टाइम पे पोस्ट करा, अब आप एनालाइज कर सकते हो अपने एनालिटिक्स में जाके कि आपका कंटेंट कब बेटर परफॉर्म कर रहा है. यू हैव सम डेटा. अगर आप टाइम सीरीज ही नहीं रखोगे, मतलब आप हर रोज ही नए टाइम पे कर रहे हो, तो फिर आप हो सकता है किस दिन 5 बजे अच्छा परफॉर्म कर गया हो, बट आप हर रोज 5 बजे करो तो ना करे. मे बी दैट्स बिगिनर्स लक कि आपने एक बार ही करा चल गया. So to analyze if a particular time slot is working for you, you have to give it time. Wow, what a line. But yeah. So मतलब इसे अब मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने में कि मैं 1 बजे ही पोस्ट करती थी. 12 के 1 वाला, नॉट रात के 1 वाला. तो रात का 1 भी 12 के बाद ही आता है, बट ओके सॉरी. मतलब नून वाला आफ्टरनून वाला एक. तो बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. इनफैक्ट फिर मैंने 5-6 बजे के अराउंड पोस्ट करना शुरू करा, एंड वो मेरे लिए बेटर आउटकम्स लाया. तो आई थिंक हमें ऐसे फिक्सेटेड नहीं रहना है कि यार एक ही टाइम है ना, इसी पे चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग इसी पे मेरी ऑडियंस देखती है. भाई तुम्हें लग रहा है, पर हो सकता है ऐसा सच ना हो. तो आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपन रहो, बट गिव योर सेल्फ सफिशिएंट एनालिटिक्स टू कम टू अ पॉइंट. दैट इज माई टेक. आई थिंक मेरा इसमें सिर्फ यही रहेगा कि लाइक अगेन रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच में मत पोस्ट करो. ओवरऑल जब मन कर रहा है पोस्ट करो. ओवरऑल सिमिलर आपके लाइक्स इंप्रेशंस रहेंगे. दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. बस ये होता है कि जैसे अगर आपको कुछ वैसे दिखाना है स्टूडेंट्स को दिखाना, अगर आप रात को 7-8 बजे के अराउंड पोस्ट करोगे इट इज मोर लाइकली टू गार्नर मोर लाइक्स, क्योंकि अभी बच्चे आए थक हार के अपने क्लासेस ऑफिस से. अब उनको थोड़ा टाइम पास तो करने के लिए 2-3 घंटे, तब स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा चलेगा, तब एम्प्लॉयज के लिए भी चल सकता है. बट इफ यू आर अनाउंसिंग समथिंग गुड, यू आर डूइंग अ ब्रांड कोलैबोरेशन, सुबह अच्छा चलता है रात को, क्योंकि नो वन वुड वांट टू सी अ ब्रांड कोलैब इन द इवनिंग. मतलब मेरे
मैंने तो जहां तक याद है मैंने कोई ब्रांड कोलैप्स करे भी नहीं है दिन में, सॉरी रात में, मेरे सुबह ही अच्छे लाइक्स हैं जो मैंने डाला। हम्म। और जैसे अभी आप लोगों ने ये सब बताया, अब मैं अगर एक बात करूं, जो आप लोग का लिंक्डइन का फॉलोअर बेस है, इसके बियॉन्ड आप लोग इसको कैसे लेके जाने का प्लान करते हो? कि जैसे कई लोग अगर यूट्यूब में बहुत ज्यादा फॉलोइंग आ जाता है तो वो लोग बाकी चैनल्स बनाने लग जाते हैं या इंस्टाग्राम में आ जाते हैं और दूसरे चैनल्स में, तो आप लोगों का क्या प्लान है अपने इस लिंक्डइन के फॉलोअर्स को कहाँ चैनलाइज करने का? मेरे तो भी इतने फॉलोअर्स है नहीं वैसे, आई थिंक। काश ये मुझे पता होता। मैं पिछले 10 साल से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉलोअर्स हैं उनको अब आगे क्या करना है। मेरे पास आई फ्रैंकली थिंक इस चीज़ का आंसर है नहीं। बट आई थिंक एक फ़ायदा जो होता है, मतलब जो मुझे, मैं पर्सनल लेवल बता रहा हूँ, जो मुझे बेनिफिट होता है कि जिस तरीके की मेरी प्रोफाइल है या जिस तरीके का फॉलोअर बेस है या जिस तरीके के कंटेंट मैं डालता हूँ, राइट, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट अ मीटिंग डन फ्रॉम विद एनीबॉडी। मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को मीटिंग के लिए बोला हो, मुझे मीटिंग ना मिली हो। सिंस आई एम सेल्स एंड स्ट्रेटजी, मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। तो ट्रू। वो एक फायदा होता है, मतलब दिस इज द एडवांटेज दैट आई हैव बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। बट उन फॉलोअर्स को क्या करना है, कैसे आगे मोनेटाइज करना है, दैट आई डोंट हैव एन आंसर टू। बट ईच पर्सन has its own motto, right, has its own thought process also, कि उसको आगे क्या करना है उसको। I never wanted to be a content creator as such। ना मेरे पास काफ़ी ब्रांड कोलैब के आते हैं। मैंने बहुत ही चुनिंदा कुछ ब्रांड कोलैब्स किए होंगे, जो भी उनके जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिनके लिए करना मुझे ज़रूरी था। बिकॉज़ दैट्स नॉट समथिंग आई वुड वांट टू अर्न माय मनी, माय ब्रेड एंड बटर फ्रॉम। वो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और है। मेरे को अपना एक बिज़नेस बिल्ड करना है, अब मेरे को एक कंसल्टिंग फर्म बिल्ड करनी है, राइट? या फिर जब मैं एक जॉब में था तो मेरे को अपना वो सेल्स का जो मेरे को टारगेट्स मिले थे वो मुझे बढ़ाने थे, या वो मुझे अचीव करने थे। तो मैं उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ लिंक्डइन को, या अपने फॉलोअर्स को भी, या अपने कंटेंट को भी उसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। बट हर एक का अलग हो सकता है। मतलब अगर किसी को कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, किसी को स्पीकर ही बनना है, तो फिर वो उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। बट मेरा कभी भी वो थॉट हर्ष प्रोसेस था। आपका? देखो यार, मैं तो ऑनेस्टली इस चीज को मैंने लिंक्डइन पे एडमिट करा है, आई एम अ वेरी रिस्क एवर्स पर्सन, ठीक है। तो जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएशन से पैसा आता है ना, उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएशन से पैसा जाता भी है। तो मैं वो तो हूँ नहीं जो एक्टिंग कर सकता है, ठीक है, मैं जोक्स भी नहीं क्रिएट कर सकता। और अगर मैं पॉडकास्टिंग में जाता हूँ जहाँ पे आजकल अच्छा खासा पैसा भी है, उसके लिए यार आई आई डू बिलीव दैट यू नीड टू बी एट अ सर्टेन लेवल। इतने साल की एज में क्या पॉडकास्ट बनाऊंगा? और अगेन पॉड सॉरी सॉरी, नो ऑफेंस बट नो ऑफेंस, सॉरी, ठीक है। कोई इशू नहीं मतलब है मैं भाई, बस कोई यहाँ इशू पे नहीं है। ये कहना चाह रहा था कि मेरा तो आगे का ये है कि अभी अगले 6 महीने, मतलब मेरा ये कि मैं रियल लाइफ में ज्यादा लोगों से मिलूं, चाहे मेरे फॉलोअर्स अगले 1-2 साल स्टैग्नेंट भी रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कि मैं कैसे इन चीज अपने कनेक्शंस को एक रियल लाइफ बेटर, क्या बोलते हैं, कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पिछले 5-6 महीने मैंने जैसे बहुत करे हैं। मैं आगे चाहूंगा कि मैं अगले, जब तक सीए बनता हूँ, सीए के अगले काफी टाइम तक मैं रियल लाइफ कनेक्शन पे फोकस करूँ। उसके बाद माइट शिफ्ट टू यूट्यूब, मतलब यहाँ से ऑडियंस थोड़ा यूट्यूब पे करने के लिए यूट्यूब पे थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ, इस लिंक्डइन पे थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ। बट लेट्स होप लाइक दिस इज अगेन माय, मैं चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम कभी कंटेंट क्रिएशन में तो ना हूँ, क्योंकि फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन अपने आप में अभी क्या है, लाइक ठीक है, मन किया पोस्ट ना कर दिया। बट जब हुआ था ना कि यार अब आज इस महीने मेरे को 50,000 लाख रुपए अपने लिए कमाने ही कमाने हैं, फिर होता है वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज। हम्म। एब्सोल्युटली, अग्रीड, अग्रीड। और फिर जब हाँ जी वैल्यूज पे ब्रो। कॉम्प्रोमाइज होता है ना, जैसे मैंने कहा कि जो जहां जा रहे हैं ना, ये सीधे से नीचे आएगा 2-3 महीने बाद। हाँ, ट्रू, समझ गया। तो तो मेरा आप बस लोग यही तो जैसे कहना था अभी के लिए तो। हाँ जी। आप लोग जैसे गोस्ट राइडिंग तो करते होंगे। हाँ जी। हाँ, सो मतलब गोस्ट राइडिंग के लिए आप लोग मतलब क्या आउटरीच करते हैं, मतलब कोल्ड रीच आउट आप लोग करते हैं या इनबाउंड आ इनबाउंड जाता लीड्स, है? इनबाउंड। मैंने नहीं कर रखा। मैंने आई एम ओके। अ एसईओ राइटिंग में आई हैव एक्सपीरियंस, वो मैंने कर रखा, बट घोस्ट राइटिंग नहीं कर ओके, मनीष आप गोस्ट राइडिंग कर? नहीं, अच्छा, तो हर्ष से अब हम सुनेंगे गोस्ट राइडिंग कर रहे हैं। हर्ष आप बताइए, आप कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं गोस्ट राइडिंग के लिए? रखा। यार मेरा बहुत सिंपल है, मतलब आई वोंट टॉक अबाउट चार्जेस, क्योंकि चार्जेस अगेन स्पेसिफिक स्पेसिफिक हो सकता सीए। है।
नहीं मतलब रेंज तो यार देना पड़ेगा मैं हर्ष, हैं एक रेंज तो देना पड़ेगा कुछ हर्ष। नहीं बोलने वाला ये, नहीं एक नहीं कुछ मैं कुछ रिवील नहीं करेगा ये। मतलब मैं कह रहा हूँ देखो घोस्ट राइटिंग प्रोवाइडेड मी इनफ मनी कि मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट एक डिसेंट लाइफ कर सकूं, मतलब मैं इतना कर सकता हूँ 10,000 12,000 से ऊपर नहीं गया हूँ कभी भी। तो आई गेस ऑल टुगेदर मंथ में दिस प्रोवाइड्स अ गुड रेंज इनफ हम्म। कि इस अमाउंट से कभी ऊपर एसेट्स गया नहीं मेरा। तो हाँ एक मतलब 10-12 हजार एक स्टूडेंट के लिए बहुत, एज अ कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत डिसेंट लाइफ प्रोवाइड कर सकता है वो। घर से जाने की जरूरत नहीं, यू कैन गो अराउंड कैफेज, यू कैन बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक आईफोन था पहले तो कभी चीज करने की नीड नहीं पड़ी। तो हाँ आप बात करो कि मैं अप्रोच कैसे करता हूँ, मैंने आज तक सिर्फ 2-3 लोगों को अप्रोच करने का ट्राई किया था, उनमें से एक ने हाँ करे, मतलब पहले से जानता था मैं उनको, तो हाँ उन्होंने हाँ कर दिया। बाकी वो एक दो को जब मैंने डीएम कर दिया उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि अगेन घोस्ट राइटिंग में भी एक अलग परसेप्शन है मेरा कि हाउ डू आई लुक एट इट। तो हाँ गॉट इट। सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अगर मान लीजिए जो जो आप लोगों ने बताया अभी 1-1.5 घंटे में, उसके बाद अगर आपको लिंक्डइन में अच्छा फॉलोअर बेस के साथ एक क्रिएटर बन जाता है, सो उसके क्या वो क्या कमर्शियल चार्ज कर सकता है कोई ब्रांड कोलेबोरेशन के लिए, और कैसे रीच आउट कर सकता है ब्रांड्स को? ब्रांड्स तनुषा, खुद रीच आपसे आउट स्टार्ट करती करते हैं। हैं। सो देखो, अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो, ब्रांड आपको खुद रीच आउट करेगी। मतलब मैंने अभी तक 13 कोलैब्स करे हैं और हमेशा से ब्रांड ने ही रीच आउट करा है। डोंट गिव मी दैट लुक, डोंट गिव मी दैट लुक हर जगह। ये मैं बता सकती हूँ, यू हैव अर्न मोर देन मी, बट मैं बता नहीं रही। आई हैव स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव एनीवे। तो डोंट डू द एनालिसिस हियर प्लीज। मेरे आई मेरे एम ऊपर ये क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल है बाय द वे। व्हाई व्हाई मनीष, यू नहीं, डोंट सो डू आई ब्रांड कोलैब? डोंट डू ब्रांड कोलैब्स। वो आई थिंक वो व्हाई? डाइल्यूट कर देते हैं मेरे थॉट प्रोसेस को। एंड एज आई सेड, आई रियली डोंट वांट टू अर्न मनी फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। ब्रेड एंड मेरा बटर, राइट? पर्पस कुछ और ही था, तो वो पर्पस वो मीट हो रहा है। मुझे मीटिंग्स मिल रही हैं, मेरा कनेक्शन बेस बन रहा है, मेरा नेटवर्क बन रहा है, और मैं फिर उससे अर्न कर सकता हूँ। तो मैं वो कर रहा हूँ रेदर देन डूइंग ब्रांड कोलैब्स। तो आई राइट। सो थिंक ब्रांड कोलैब्स डोंट गिव यू दैट मच कि आप उसे फुल टाइम सोचो लिंक्डइन से। नहीं, इट्स नॉट इंस्टाग्राम के आपको एक रील के 2 लाख मिल जाएंगे, एक पोस्ट के इतने मिल जाएंगे, नहीं मिलते यार। बहुत ही कम कमर्शियल है, बढ़ाते ही नहीं है, पता नहीं क्या कैसे लाइक से। टू गिव यू अ रेंज, लाइक अगर आप देखते हो एट मैक्स, मतलब अब देखो जो मैं रेंज देने वाला हूँ वो मैं एक वो बता रहा हूँ कि जैसे यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर फ्रॉम 0.5x टू 0.25x ऑफ योर नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ये बेसिक रेंज रहती है। और एंड ट्रस्ट में आफ्टर 0.1 या 0.15 नेगोशिएटिंग इज वे डिफिकल्ट, क्योंकि वहां उस चीज को ग्रैब करने के लिए वहां पे डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद एक प्रॉपर नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। बट यू आई हैव सीन पीपल जो 0.5x से लेके 4x नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी चार्ज कर सकते हैं, बट इट रियली डिपेंड्स हाउ स्ट्रॉन्ग और नेगोशिएशन स्किल्स आर। जो 4x बता रहा हूं, मतलब अगर मैं आज के दिन 40,000 पे हूँ, मैं 1.6 लाख चार्ज कर रहा हूँ फॉर वन ब्रांड कोलैबोरेशन, एंड ट्रस्ट मी मैं 0.5x के उस पर भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैं किसी से नेगोशिएट करने बैठता भी हूँ। तो उस लेवल की नेगोशिएशन होना भी एक क्रिएटर का होता है कि मैं ब्रांड कोलैब्स करता ही नहीं हूँ, तो मेरे को करके दिखा दे। तो हाँ, टॉकिंग अबाउट समवन एल्सेस एक्सपीरियंस, जो मेरे को पता चला कि a good company was willing to offer them 4x the number of followers, but the broader range would be around 0.05x on the low range to 0.253x on an average range, I'd say. मतलब रियलिस्टिकली जैसे आपने बोला, कोई बच्चा से हमारे जैसा क्रिएटर बन रहा है, 0.25, देखो 5,000 फॉलोअर्स से कम पे तो नहीं मिलते हैं कोलैब्स। इनफैक्ट मुझे तो आई वॉज द लास्ट वन इन माई इंटायर ग्रुप ऑफ लिंक्डइन फ्रेंड्स जिसको मिला था। मतलब मुझसे पहले सब कर चुके थे, ऐसा कोई नहीं था जिसने नहीं करा हुआ था। But I इनफैक्ट think you did your first at 7K followers. I did it at या 17K. या आई दैट्स ऑल्सो टाइम ना, मतलब टाइम हाँ गैप हाँ की। जब तक तुम 17 पे पहुंचे तब मैं 7 पे थी, और तभी एडवेंट हुआ कोलैब्स राइट। वाला थिंग का। उससे पहले ऐसा नहीं था, ब्रांड्स नहीं करते थे लिंक्डइन पे। बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि कॉलेज के बड़े इन्फ्लुएंजा आ रहे हैं ऑन लिंक्डइन, तो क्यों ना हम इन बच्चों को इस्तेमाल करें। तो विच इज अ गुड आइडिया, हमें पैसे मिलते हैं, विच इज फाइन। बट आई थिंक वन थिंग विच आई स्टूड बाय एंड विच आई थिंक एवरीवन शुड स्टैंड बाय इज ऑल्सो कि अंधाधुन मतलब कुछ भी मत लिखो। आई हैव आल्सो रिजेक्टेड कोलैब्स। अगर आपको लगता है कि ये आपके कंटेंट आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, या अगर आप ऐसा कुछ प्रमोट कर रहे हो जिससे सामने वाला इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन ले सकता है, तो आप वो मत करो। एंड अपने
कंटेंट के अंदर भी जो आप डालते हो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सेल्सy मत बनाओ, मतलब उसे डोंट मेक इट टू सेल्सy. सो लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स टेल मी कि यार इसमें ये नहीं, आपने ऐसे नहीं करा. मतलब आई विल राइट जितना मसाला मैं दे लिख दो, सकती हूँ. आप हाँ थोड़ा मतलब फेक स्टोरी क्रिएट कर दो। एग्जैक्टली मतलब मैं वो नहीं कर सकती. और ऐसे आप दूसरी ब्रांड पे डिग ले लो ना, ऐसे तो मैं वो नहीं करूंगी यार. मैं तुम्हारी भी यूजर नहीं हूँ, मैं उनकी भी नहीं हूँ. आई हैव टू बी न्यूट्रल समवेयर ना. तो उस हम्म, अकॉर्डिंग आई थिंक थोड़े से मॉरल्स को प्रोटेक्ट करके भी कर सकते हो. बाकी यार आई थिंक इतना कोई बुरा नहीं है कि करना ही नहीं है. हर कोई करता है. सेलिब्रिटीज करते हैं. मतलब शाहरुख खान थोड़ा ना वो कान पान भान मसाला खाता होगा. मतलब अगेन जस्ट टू ऐड कि लाइक मेरे को पता है तनुषा भी ये करती है, जैसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन से मेरे को नहीं पता हाँ. तनुषा तेरे को आया कि नहीं आया, बट ट्रस्ट से भाई जो अगर एक बार ही अगर कोई ट्रेडिंग की कंपनी जो भी ये सब फालतू के एप्लीकेशन होते हैं गैम्बलिंग के, हम्म. वो सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है किसी भी हम्म. प्लेटफॉर्म पे। लाइक एक बार ही आप सुन लोगे ना यूट्यूब पे या ऑल टुगेदर बाकी प्लेटफॉर्म से क्या पैसा है, एक बारी के लिए आप अपने मन में कहोगे भाड़ में जाए दुनिया, 1-2 साल में गैम्बलिंग से पैसा कमा लूं, मैं रिटायर हो सकता हूँ, इतना पैसा है। वाह, oh और my god. लिंक्डइन पे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है यार. मतलब पोस्ट अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है मतलब चलो पोस्ट लेट्स लिखते नॉट हुए. कमेंट ऑन दैट। हाँ मतलब वही. पर चलो, बट वो आपका व्यू है. बट हाँ मतलब ऐसे ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे लगता है यार कि कोई कोई जेन्युइनली गलत डिसीजन ले सकता है हमारी वजह से. तो वो कोलैप्स नहीं अभी है. वो 96 लाख वाली रील इतनी वायरल हुई तो है, कौन सी? वो जिसमें एक बंदे ने एडमिट करा कि मैं आई जैसे आईआईटी बीटेक का कोई स्टूडेंट था, वो कह रहा है कि मैं 96 लाख से कर्ज नहीं हूं, कि मैं गैम्बलिंग करता था, ऐसे कोई रील वायरल हुई काफी। ओ आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वेरी मैंने फनी. भी देखा. ओके, सो गाइस, आप लोगों ने तो काफी सारे इंसाइट्स दे दिए हैं. एनी मोर हैक्स यू वांट टू शेयर? एनी मोर हैक्स? यार कोई हैक है नहीं एक्चुअली. मतलब दैट इज अ थिंग. हर कोई हैक ही पूछता है. मन होना चाहिए काम करने का. मतलब ऐसा कुछ आई थिंक परोस के नहीं आता है. लॉट ऑफ पीपल आर वेरी ऐसे टायर्ड हो जाते हैं कि अरे यार लिख लिया एक महीना, कुछ नहीं हो रहा, स्टैग्नेंट है, समझ नहीं आ रहा. तो यार और लिखो ना, और ट्राई करो. नहीं राइटिंग मतलब स्टाइल एनालाइज ऑनेस्टली करो. हम्म. मेरा तो कभी कुछ था भी नहीं कि मेरे को, जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ. लिंक्डइन पे इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु मेड इट नॉट इवन ऑन लिंक्डइन बट ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो इसलिए बने क्योंकि कभी उनका ग्रोथ पाना टारगेट था ही नहीं, दे वर एंजॉयिंग द प्रोसेस। हम्म. आई तो थिंक या जब मतलब प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो तो तब तक तो कोई हैक की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए. प्रोसेस को एग्जैक्टली. एंजॉय करो. अगर आप को लिखने में मजा आता है तो आप लिखो. अगर आपको लिखने में मजा नहीं आता है तो देन देयर इज नो मत पॉइंट. करो. वो हाँ. वाना भी बनने की जरूरत है नहीं फ्रैंकली. तो बेटर है कि फिर मत ही लिखो. तो जब तक आपको मजा आ रहा है तब तक आपको एक्चुअली हैक्स की जरूरत होगी नहीं. एग्जैक्टली. मजा वो आप आना ही मन से बंद हो गया करो. तो आप कितने भी हैक्स लगा लो उन हैक्स का कोई फायदा होगा नहीं. सो फ्रैंकली देयर आर नो हैक्स एज सच. बट वो बेसिक जो चेक्स होते हैं जो वो लिंक्डइन आपसे एक्सपेक्ट करता है वो करो. बाकी आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी स्पेसिफिक हैक्स दैट एनीबॉडी शुड बी लुकिंग फॉर. मतलब बट चलो लिंक्डइन अगर पे फिर जस्ट वन थिंग हर्ष, से लिंक्डइन पे पोस्ट करना एक प्रोसेस नहीं लगना चाहिए आपको कि अरे यार ये भी करना पड़ेगा क्या. ओहो ये पोस्ट लिखना रह गया, अरे इस हफ्ते का पोस्ट नहीं, अरे यार बहुत थक गया हूँ. ऐसा ऐसी फीलिंग आ रही है. मतलब आप मजा नहीं आ रहा आपको, फिर रहने दो. फिर दिस इज नॉट समथिंग यू वुड लाइक. डोंट डू इट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट, और डोंट डू इट बिकॉज अरे इसमें तो पैसा है या जो भी है जिस कमी है. डू इट बिकॉज इट सेटिस्फाइज योर सोल. मतलब मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे अपने व्यूज एक्सप्रेस करना. आई एम ओपिनियनेटेड वुमन. मुझे अच्छा लगता है अपने ओपिनियन लिखना, अपनी बात करना. तो मैं कर रही हूँ. जब मुझे कुछ लगता है कि मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ. आई हैव माई ओन बाउंड्रीज कि मैं कितना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता सकती हूँ. बट अगेन इट हैज टू कम फ्रॉम मी. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. तो ये चीज का ध्यान. हाँ हर्ष, अब आप बोलो. मुझसे मैं इसमें, हाँ जी हाँ सॉरी जी बोलो, मनीष. आप बोलो। वन सेकंड. हाँ. सो मुझसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आपने तो कितना साल पहले चालू किया था बट आपके फॉलोअर्स इतने सारे हैं नहीं, 40,000 के करीब हैं, राइट. बट मेरा थॉट प्रोसेस कभी भी वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स था ही नहीं. जैसे मेरे लिए कभी भी कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू मुझे सिर्फ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने. वो मैं करता हूँ आज भी.
अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं महीने में एक बार लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं करता, कंटेंट का कोई कैलेंडर नहीं है मेरे पास कि मुझे ये करना ही करना है। आप मेरे एग्जैक्टली। देखोगे कि कई बार महीने महीने भर तक मैंने पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई वाज वेरी बिजी इन माय वर्क, और कई बार मैंने एक दिन में 3-3 4-4 पोस्ट भी किए बिकॉज आई वाज फ्री ऑन दैट डे एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस। सो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्रांड कोलैब्स पे मुझे लगता है पर्सनली इतना कोई खास ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक आपको मज़ा आ रहा है लिखते रहो, मज़ा आना बंद कर हो गया, कई बार ऐसा भी होता है वो एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, राइट? मुझे भी कई बार आता है राइटर्स ब्लॉक, नहीं नहीं लिख पाते, महीना महीना 2-2 महीने तक मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 महीने के बाद से वापस से स्टार्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। वो फॉलोअर्स तो कहीं मेरे जा नहीं रहे, मुझे बस थोड़ा सा एल्गोरिथम को थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, मुझे कमेंट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा लाइक करना पड़ेगा, एक दो छोटे मोटे पोस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद एक बड़ा पोस्ट करना पड़ेगा। वो एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ बाद में कर सकता हूँ, बट अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो एक बार मत करो। तो बेसिकली जब तक मज़ा आ रहा है तब तक करो, नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए छोड़ दो उसको। मैं तो या इसमें बस यही चीज कहूंगा जिसको पीस ऑफ एडवाइस देनी है कि अगर आपने अपनी लाइफ में लाइक रियल लाइफ में आपको एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, डोंट थिंक कि मैं लिंक्डइन के ऊपर एक सुपरस्टार ही बन जाऊंगा। ऐसे बिग फोर एमबीबीज आईएम्स मेरे पीछे थाली लेके खड़े हैं। ट्रस्ट मी, मैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, 20-25 हजार फॉलोअर्स थे। एक पार्टनर एक डायरेक्टर ने मेरी प्रोफाइल व्यू नहीं करी थी। अब लोग सोचते थे कि मेरे तो पता नहीं पार्टनर डायरेक्टर कितने रेफरेंसेस हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम लाख लेके डालते रहो, कोई दिख रहा है तो मेरे को बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरी हेल्प कर सकता है तो आ जा, नहीं कर सकता मत आ। हाँ ठीक है, अगर एक बार के लिए दिखा दिया इट वुड बी अ गुड थिंग, बट रियल लाइफ में मेहनत करते रहो, लिंक्डइन पे आओ, शेयर योर थिंग्स। और देखो यहाँ पे जब सारे बात करें ना कि इतना पैसा, हाँ लग रहा होगा फैसिनेटिंग कि यार 2-3 हजार रुपए अगर मैं लोअर साइड पे देखता हूँ, बस एक चीज 20 मिनट में लिखने के 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे। बट यार मैं तनुषा को यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, कलेक्टिवली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भी नहीं बने, और मेरे को कितने हो गए हैं, 1.5 साल, तनुषा को भी 1.5 साल हो गए लिखते हो यार। मेरे भी नहीं बने भाई इतने, बहुत मतलब बहुत हाँ कम ही है। इट्स नॉट अ फैंसी अमाउंट। जितना आपको इंस्टाग्राम दे सकता है, यूट्यूब दे सकता है, वो लिंक्डइन नहीं दे सकता। और हमने वही तो बट ऑनेस्टली वो सोच के भी नहीं लिखा था कि ऐसा कुछ कभी होगा। वो तो हो रहा है तो हम बस कि ठीक है, हो रहा है तो कर लेते हाँ हैं मतलब आगे से आगे। बीच बीच में थोड़ा साइड में अच्छा लगता है कि ठीक है थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, एक छोटा मोटा बोनस। बट यहाँ पे जो लोग मिलते हैं लाइक, मतलब मैं तो हमेशा देखता हूँ कि अगर कभी आना बंद भी हो जाए, जैसे मैं तो मतलब एक बार बहुत रेयरली करता हूँ ब्रांड कोलैबोरेशंस भी, बट जितना आसान लोगों को रीच आउट करना आज के दिन है ना, वो कभी नहीं था। मतलब अगर मैं आज से 3 साल पहले जाऊं और मैं कहूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, वो मैंने मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ। एंड आई थिंक मनीष एंड तनुषा विल एग्री टू मी कि कितना आसान है लाइक वंस यू गेट इनटू द कम्युनिटी। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू सो मच हर्ष, तनुषा एंड मनीष। आप तीनों ने आज बहुत सारे इंसाइट शेयर किए हैं, एंड आई होप जो ये वीडियो देखेगा वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कैसे लिंक्डइन वर्क करते हैं, क्या माइंडसेट से लिंक्डइन में जाना चाहिए एंड करना चाहिए काम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर प्लेजर थैंक्स मानव, थैंक थैंक्स यू। मानव फॉर हैविंग अस।